Welcome to the YouTube channel of Autism Without Borders, where you will be getting awareness regarding autism, other developmental delays, neurological disorders, their red flags, causes and interventions. ऑटिज्म और दीगर असाबी उर्स के बारे में आगाही, उनकी अलामात, वजूहात और उनका हल। Assalamu alaikum. Walaikum assalam. And nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiba. With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, we start our today's session, and we also ask Allah for the beneficial knowledge and the actions and good deeds which are accepted to Him. And welcome to all the participants on the behalf of Pakistan Pediatric Association and Autism Surveillance and Management Project, Autism Without Border. So first of all, I just briefly describe about our project, and within 5 minutes, because our today's speaker is Dr. Sidra Kaleem, and she is a developmental pediatrician and a pediatric neurologist, and she is assistant professor at Aga Khan University Hospital, children in pediatrics. So first I want to briefly describe about our project. It is a part of the preventive pediatric program, and it is called Autism Surveillance and Management Project. And as we know that the preventive pediatric, what we mean when we say preventive pediatrics, it is the physical, mental, and social well-being of children, with aim of attaining a maximum good potential. So under this, we are doing Autism Surveillance and Management Project, and under the umbrella of Autism Without Borders. Autism Without Borders is an education and support services non-government organization. And then I briefly describe what is our objective. It's early diagnosis of the ASD, कि autism को हम जल्द से जल्द diagnose करें, and then intervention. And even if we haven't diagnosed autism, we should start intervention at least to achieve best potential. And our implementation plan is awareness programs for the healthcare providers and children caregivers. And we being women and being lady, we fit in healthcare providers and children caregiver both. And then we provide training for the ASD in toddlers. At this time, we are focusing on the toddlers, but we are also doing for the child and above, whenever we require. But as a well baby clinic setting, we try to train all the doctors and all the nurses and paramedical staff to do the ASD screening under the supervision of the pediatrician. Then we refer. और रेफरल का जो प्रोसेस है नादिया ज्यादा अच्छा सा बताएंगी. I think I will give 5 minutes to Nadia to describe all these things. We have made the Autism Blue book, and in the Autism Blue book, actually all the rehabilitation centers, not only for the autism, but all the rehabilitation centers are entered. And we refer for the diagnosis even and the intervention. And we all know we are not able to diagnose. The international standards are only 4, like the developmental pediatrician, then pediatric neurologist and pediatric psychologist and pediatric psychiatrist. They can diagnose the autism. Then we refer for the intervention and then for the rehabilitation and follow-up. And a few facts about the autism, that the World Autism Day is being observed April 2 for the awareness of the autism. And US population, in the US population, its incidence is about 1 in 60. And in Canada, it is 1 in 66 in children and youth.
are diagnosed with ASD in Canada. And what we can say about the Pakistan, it's very uncertain, but according to the Pakistan Autism Society, it is 4 lakh children. Although last year in the 2020, it was 3,50,000, and now it is 4 lakh children from the autism spectrum disorder in Pakistan. And the stats from the South Asia estimate that the disorder may be as common as it is elsewhere in the world. And according to the CDC, it is 1 in 54. And WHO, it is estimated that about 1 in 160 children has autism. और अब पाकिस्तान की हम पॉपुलेशन को अगर देखें तो इट इज 225 मिलियन, हम कहते हैं कितना 22 करोड़ आई थिंक कह सकते हैं हम. और इस पॉपुलेशन पे यू कैन सी दैट अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट एस्टिमेट दैट द कंट्री नीड्स 47 चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट पर 100,000 चिल्ड्रन, और इससे बहुत कम है हमारे पास. और आई थिंक डॉक्टर सिद्रा ज्यादा अच्छा बता सकेंगी इसके ऊपर, क्योंकि वॉट एवर आई कैन कलेक्ट द डेटा. हम देन अबाउट द चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, there's a society, the Child Neurologist Society in Pakistan, and according to them, more than 40, but they haven't described the exact number of the child neurologists. And we are lucky and we are happy that today Dr. Sidra is with us. And she is developmental pediatrician and she is pediatric neurologist. तो साथ साथ मैं उनकी इंट्रोडक्शन भी कर रही हूँ. Developmental pediatrician, if I am not wrong, it's like 4 to 5, I think, in Pakistan. और फिर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ऑटिज्म कितने सारे हैं. मैं थोड़ा सा कोशिश ये करूंगी कि अपने पार्टिसिपेंट से भी कि बोथ इंग्लिश एंड उर्दू हम साथ साथ कर रहे हैं. जहाँ भी कोई चीज समझ में नहीं आए हम उसको पूरा उर्दू में भी बता सकते हैं. तो ये सारे जो हैं ये प्रॉब्लम्स हैं जो एएसडी के साथ एसोसिएटेड हैं, नॉन वर्बल हैं, बीइंग बुलीड हैं, फिर उनमें एपिलेप्सी भी, फिट्स भी हो सकते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं. दे आर स्ट्रगलिंग विद द वेट इश्यूज. और इन सब में फिर सबसे टॉप पे जो है वो क्या है कि कॉस्ट ऑफ द ऑटिज्म. ये तो देखें कि यूएसए और कनाडा में ये सब देखा जाता है. हमारे यहाँ तो वी आर डेवलपिंग कंट्रीज एंड वी कैन नॉट फॉलो दिस स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. दैट्स व्हाई वी आर इन टुडेस प्रोग्राम. तो ये यूएसए में इन्होंने कैलकुलेट किया तो इट इज $268 बिलियन इन 2015 एंड इट विल गो टू $461 बिलियन बाय 2025. तो इट मीन्स के अर्ली एएसडी डायग्नोसिस इंटरवेंशन, they calculated it that it can reduce healthcare cost by up to 2/3. So that's why we arranged today's session. And now I think we have some time, so we can invite Nadia to describe about. Nadia is a coordinator of our project, ASM project, Autism Surveillance and Management, and she is also the special educator and a proud mother of autistic child on the top of it. तो नादिया मेरा ख्याल है आप पेरेंट्स के कंसर्न भी बता सकती हैं और स्पेशल एजुकेटर्स के भी. Sure. Thank you so much, Dr. Zah, for giving me this opportunity. First of all, Assalamu alaikum to everyone. और जैसे डॉक्टर ज़ा ने मेरा इंट्रोडक्शन पहले ही बता दिया है, सबसे पहले मैं जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगी तो आई से आई एम मदर ऑफ अ चाइल्ड विद ऑटिज्म हु इज 7 years old, बिकॉज ऑफ whom आई एम हियर in front of you all. He became my motivation to go for masters in special education and then behavior therapy course. तो क्या चीजें मुझे इस तरफ लाई और जो मोस्टली पेरेंट्स के कंसर्न्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने थोड़ी सी देर में जल्दी से रखूंगी. और इसी वजह से हमने ये सोचा कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर इज अ डायर नीड ऑफ ट्रेनिंग इन द फील्ड. तो मतलब जो भी जैसे डॉक्टर अज़रा ने सारे स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन कर दिए हैं आप लोगों को, तो वाकई ये इशू है. हमारे पास बहुत कम लोग हैं इस फील्ड में. डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस की अगर हम बात करें, न्यूरोलॉजिस्ट की बात करें, और जैसे अगर हम इधर की बात करते हैं लाइक इस्लामाबाद, रावलपिंडी की बात करें, तो देयर आर जस्ट
4 to 5 people who can do assessment or diagnosis, and mostly of them are abroad. And same goes for, मतलब जो parents का main concern आता है वो यही आता है कि they are always asking, please tell me anyone who can do diagnosis. और अगर कोई उनको पता नहीं चलता है, they just that they are not in Pakistan, they are not available in Pakistan. And if they are available in Pakistan, the charges are too much, which are not affordable for the middle class even. तो ये एक तो कुछ चीजें आ गई अगर हम डायग्नोसिस की बात करें. इसी तरह अगर हम इंटरवेंशन की बात करें तो भी हमारे पास मैनेजमेंट इसमें इंक्लूडेड है, जिसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, पीडियाट्रिशियंस को भी और स्पेशल एजुकेटर्स को भी. क्योंकि स्पेशल एजुकेटर्स जो होता है, मैं उनको कहती हूँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. मतलब हमें हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, लेकिन still we are not authorized to go for assessments. Special educators ko to I think we should take them aside. Even psychologists here nowadays, they are not being trained. Even if they are being taught about the assessment scales, everything, लेकिन उनको भी practice नहीं करवाई जा रही. और unfortunately ये जो online system चल रहा है हमारा education का, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह I am running an institute named Special Care here in Rawalpindi. So many of the psychologists come to me and they say that we are not being taught how to do assessment, how to do intervention. And unfortunately, this is the biggest concern for parents. और मैं डॉक्टर सिद्रा से कहूँगी कि एक और जो बिग कंसर्न है उस पर भी वो रोशनी जरूर डालें कि अगर तो डायग्नोसिस हो जाता है and it comes different from 2-3 places. मतलब सेम वेंट विद माय ओन चाइल्ड के 2 जगह से कराया, एक ने ADHD डायग्नोस किया, एक ने ऑटिज्म किया, एक ने हियरिंग इंपेयरमेंट किया. तो मतलब दिस इज नॉट जस्ट माय कंसर्न, इट इज कंसर्न ऑफ आई थिंक ऑलमोस्ट 70% of the parents of children of special needs children. So without taking much of your time, I will hand over my mic to Dr. Sidra Kaleem to discuss these issues and what can we do in this regard. Thank you so much. Thank you, Nadia. And thank you, Dr. Azra. Nadia, I'm actually in awe after listening to your story. I'll just try to share my screen ताकि हम देख सकें. Okay. Yes, you can. तो जैसे कि डॉक्टर अजरा ने कहा कि हम इसको इंग्लिश और उर्दू मिक्स रखेंगे, सो इंग्लिश, ताकि हम ज़्यादा इंटरैक्टिव रख सकें और हम सबको एड्रेस कर सकें. सो द टॉपिक ऑफ माय टॉक टुडे इज रैशनल ऑफ ट्रेनिंग पीडियाट्रिशियन एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. डू वी रियली नीड टू नो? तो सवाल का आई थिंक बहुत सारा जवाब तो डॉक्टर अजरा ने दे दिया. हमारे नंबर्स ही हमें इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि यस, हम सबको एक रोल प्ले करना है. ये किसी एक पे लिमिट हो नहीं सकता और होना नहीं चाहिए. सो आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. हम अपनी टॉक को इस तरह से लेके जाएंगे क्योंकि मैं हर टॉक के, अगर हम ऑटिज्म पे करें तो डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप जितने लोगों से सुने, बट उसको हमेशा जो है रीटरेट करना पड़ता है ताकि हम सब समझ सकें. और अगर हम देख रहे हैं रेड फ्लैग्स हैं तो हम में से कोई भी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो एजुकेटर हो, चाहे वो थेरेपिस्ट हो, वो आइडेंटिफाई करे. बर्डन डॉक्टर अजरा ने कहा, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस एंड हाउ टू मेक इट इजी, एक्सेसिबल. सो जैसे कि इस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. तो एक तो ऑटिज्म जो कि ऑटो यानी कि इंडिपेंडेंस से निकला है, कि पीपल विद इम्पेयर्ड सोशल स्किल्स और जो थोड़े इंडिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं, हु हैव डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप. स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि सब एक जैसे नहीं होते. तो जैसे हम रेनबो देखते हैं, उनमें सारे कलर्स एक दूसरे में मर्ज करते हुए, लेकिन सबकी एक अपनी एंटिटी भी होती. तो ये एक स्पेक्ट्रम है. और ये डिसऑर्डर है, ये डिजीज नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है. लोग इसके साथ पैदा होते हैं और वो डिफरेंट एजेस पे मैनिफेस्ट करता है. तो जैसे कि मैंने कहा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन. इट्स, आई वुड से इट्स एन अम्ब्रेला टर्म फॉर एन एंटायर प्रोफाइल. एक खास किस्म का प्रोफाइल है. जैसे देख के आपको लगता है कि अच्छा, सोशलाइजेशन में डिफिकल्टीज हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, स्पीच में डिफिकल्टी है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इम्पेयर्ड है. तो नादिया की बात को आंसर करते हुए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जब पेरेंट्स आते हैं कि
ये हेयरिंग इम्पेयर्ड तो नहीं है, या ये इसको खाली स्पीच डिले तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस के बाद या मेरे पास भी इसी कंप्लेन के साथ आते हैं कि भाई बोल नहीं रहा. लेकिन वन हैज टू अंडरस्टैंड कि हाउ इज द चाइल्ड बीइंग एबल टू फॉर्मुलेट रिलेशनशिप, मतलब रिश्ते कैसे बना रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑटिज्म का. एंड इट इज अ स्पेक्ट्रम एंड कंटिन्यूम, यानी कि वेरिएबल प्रेजेंटेशन है. देयर आर किड्स हु आर वर्बल, देयर आर किड्स जिनकी प्ले स्किल्स अच्छी होती हैं, देयर आर किड्स हु आर इंटेलिजेंट हु मे एक्चुअली मास्क देयर फीचर्स. तो ऐसी बहुत सारी चीजें, तो ये सोचना होता है कि जरूरी नहीं वो क्लियर कट वॉक इन द डोर टाइप का ऑटिज्म हो जो आपको देखते ही पता चल जाए. एंड ये बात समझने की है कि जिनको ऑटिज्म होता है वो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ना हमारे एनवायरनमेंट में उसे डिफरेंटली प्रोसेस कर रहे होते हैं. जैसे हम अभी ये हमारा जो जूम का मीटिंग हो रही है, हम जो है एक दूसरे के बैकग्राउंड को ब्लैंक करके सिर्फ फेसेस पे फोकस करें. शायद इफ देयर इज एन इंडिविजुअल विद ऑटिज्म अमंगस्ट अस, वो शायद डॉक्टर अजरा के पीछे रखे हुए ब्यूटीफुल वेज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हो, है ना. सो फॉर देम कि वो ऑब्जेक्ट की तरफ जो है ग्रेविटेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पीपल. सो ये समझने की थोड़ी चीजें होती है कि इट इज जस्ट नॉट अबाउट कि भाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या ये है या मेंटल रिटार्डेशन है. इट इज कि वो हर इंफॉर्मेशन जो हमारे इन्वायरमेंट में है उसे डिफरेंटली प्रोसेस कर रहे हैं. सो DSM-5 क्राइटेरिया सारे डॉक्टर्स को, सारे थेरेपिस्ट को, जो लोग ऑटिज्म को डील करते हैं, जो लोग उन इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं जिनको ऑटिज्म है, दे नीड टू नो दिस क्राइटेरिया. एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे, क्योंकि सारे टूल्स भी इसी को इलैबोरेट करने के लिए बनाए गए. सो क्या है? परसिस्टेंट डेफिसिट्स इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट. मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को मैं कहूँगी कि डबल कोट्स के साथ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक बच्चा एक जगह कहते हैं खराब है और हो सकता है दूसरी जगह अच्छा हो तो उसको ऑटिज्म नहीं है. तो यू हैव टू वेरीफाई कि ये मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह से हो रहा है या नहीं. दूसरा ये कि उसमें अगर इसी जो क्राइटेरिया है एक को मैं वो करूं, इलैबोरेट करूं, तो उसमें होता है कि सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, यानी कि जितनी गर्मजोशी से आप मिल रहे हैं, जिस तरह से आप इमोशंस शो करें, शायद उस बच्चे को डिफिकल्टी हो. दूसरा क्राइटेरिया ये है कि यूज ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज भी जो है वो उसका इम्पेयर्ड होता है. तो मतलब ये है कि चलें सही है वर्बल या वो स्पीच लिमिटेड हो, लेकिन और तरीके होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के. तो एक बच्चा जिसको ऑटिज्म है या एक इंडिविजुअल जिसको ऑटिज्म है, वो नॉन वर्बल जेस्चर्स भी अच्छे एक्सप्रेस यूज नहीं कर सकता. जैसे पॉइंटिंग है, आई कांटेक्ट है. जरूरी नहीं कि आई कांटेक्ट कहते हमेशा खराब हो, लेकिन दीज आर द फीचर्स. या जितना एज में एक्सपेक्टेशन है नॉन वर्बल यूज करने की, वो ना कर रहा. फिर थर्ड है डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स. सो मे बी गोइंग टू स्कूल हैविंग नो फ्रेंड्स, मे बी लिविंग इन अ फैमिली बीइंग आइसोलेटेड ऑन हिज कंप्लीटली ऑन हिज ओन. सो ये सारे वो हैं फीचर्स हैं. फिर रिस्ट्रिक्टिव एंड रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी. बिहेवियर्स में जो हम कॉमनली देख सकते हैं, जैसे पेरेंट्स डिस्क्राइब करते हैं कि स्पिनिंग है, हैंड फ्लैपिंग है, उस बात को मैं इस तरह से वो भी करूंगी कि 1% ऑफ टिपिकल पॉपुलेशन ऑल्सो हैज स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर. बट जब तक कि वो अगर वो सोशल कम्युनिकेशन के डेफिसिट्स के पैराए में आएगा तो आप ऑटिज्म सोचेंगे. अगर आइसोलेशन में एक बच्चा हैंड फ्लैप कर रहा है या स्पिन कर रहा है तो आप ऑटिज्म नहीं सोचेंगे. सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरेस्ट हो सकते हैं. आपको कोई रेपिटेटिव बिहेवियर नहीं दिख रहा, लेकिन आपको लगता है कि वेरी रिजिड, likes to stick to a routine, likes things in a particular manner, very selective about diet. ये sleeps in a certain manner, needs some like कुछ चीजें हैं जो उसको चाहिए होती हैं before falling asleep. तो ये सारी चीजें जो rigidity है, that might also indicate कि there is an underlying autism. अच्छा जी. फिर इसके अलावा कि symptoms must be present in the early developmental period. ये शुरू से होना चाहिए, मतलब पैदाइश से नहीं, लेकिन एक early infancy से हो जाता है. कभी 18, जो एवरेज एज है वो 18 से 18 महीने से लेकर 2.5 साल तक है. प्रेजेंटेशन थोड़ी सी और लेट हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि somebody comes up at 5 years of age and वो पेरेंट कहेंगे उससे पहले तो ठीक था, अभी मसला शुरू हुआ है. So keep that in mind. फिर it has to cause significant impairment in social, occupational and other aspects of life. ऐसा नहीं है कि हर इंट्रोवर्टेड इंसान जो है वो ऑटिस्टिक होता है, ऐसा नहीं है. दे शुड हैव डिफिकल्टी. हम सब कहेंगे हमारे कुछ रिजिड बिहेवियर्स हैं, हमारे कुछ बिलीव्स हैं जिनसे वी ट्राई टू स्टिक टू देम, बट दैट डजंट मीन वी आर ऑटिस्टिक. इट हैज टू कॉज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट फॉर अस टू से. फिर ये जो फीचर्स हैं ये किसी और चीज से आप प्रूव नहीं कर सकते. यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले से आप नहीं कह सकते, क्या कहते हैं, ये अपार्ट होना चाहिए.
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है उसको ऑटिज्म नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। बट उसमें आपको प्रोफाइल में देखना होगा कि बहुत डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, कहीं मोटर माइलस्टोन्स या वो एक लेवल पर हो और जो सोशल हो वो सिग्निफिकेंटली लोअर हो। दैट इज अ पॉइंट व्हेन यू कैन थिंक ऑफ ऑटिज्म। फिर हाउ टू स्पेसिफाई इट फर्दर, विद एंड विदाउट लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। इट शोज कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को जिसको ऑटिज्म उसको लैंग्वेज इम्पेयरमेंट हो, दे कैन बी वेरी फ्लुएंट, और उसमें ही अक्सर मिस्ड डायग्नोसिस होते हैं। विद एंड विदाउट अकम्पनिंग इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, with and without medical or genetic condition, there might be a child with Down syndrome that has autism, there might be a child with fragile access that has autism, there might be a child जिसको जो है epilepsy है और उसको autism है। ये थोड़ी सी लंबी हिस्ट्री है, बट आई रियली लाइक एंड आई वुड लाइक ये स्लाइड अगर इसमें मैं आपको जिस गो थ्रू करूं तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है। ये 1460s में लोगों ने जब ऑब्जर्व किया कि वो लोग जो अपने आप में रहते थे, there is a term, a very rude term called Fools of Christ that came up 1469 में। फिर 1790 में Wild Boy of Aveyron, मतलब ये कि जैसे कि हम टार्जैन को वो करते हैं, एक कार्टून कैरेक्टर है, somebody who was left behind in the wild and grew up with the animals, had no social skills, had no means to survive in our regular social society। फिर सबसे ज्यादा जो काम हुआ वो 1940s में हुआ। दो major physician psychiatrist basically, Leo Kanner and Hans Asperger, दोनों जो थे, एक जर्मन ऑस्ट्रिया में काम कर रहा था, एक यूएस में काम कर रहा था, एंड दे बोथ सॉ किड्स विद सिमिलर ट्रेट्स। जो कैनर वाले थे वो यूजुअली इतने कम्युनिकेटिव नहीं थे, हांस एस्पर्गर वाले वेरी ब्राइट एंड कम्युनिकेटिव, सो उसका एस्पर्गर सिंड्रोम आया और कैनर ने जो है ऑटिज्म साइकोपैथी के नाम से पब्लिश किया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, और उसमें एक बीच में एक मिथ आया या एक स्टडी आई कि भाई रेफ्रिजरेटेड मदर इज अ कॉज ऑफ ऑटिज्म, कि वो मदर जो बहुत कोल्ड होती हैं, जो अपने बच्चों से अटैचमेंट फॉर्म नहीं करती हैं, उनके बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है, जो कि बाद में डिस्प्रूव हो गई, बिकॉज इज नथिंग लाइक दैट। देन 1960s में फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे काम होना शुरू हुआ, तो जिसमें ABA थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जो कि आई थिंक इट्स द रेज, जिसको समझना पड़ेगा, जो कि खुद एक पूरा सेमेस्टर ले सकती है किसी के एजुकेशन का। तो वो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं बाय रेगुलरली इंट्रोड्यूसिंग इंस्ट्रक्शन एट अ वेरी रैपिड रेट, और फिर आप बच्चों को बिहेवियर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके मॉडिफाई करते हैं। देयर इज मोर माय अदर कॉलीग्स कैन कंट्रीब्यूट। उसके अलावा टीच इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें पेरेंट्स को एम्पावर कर रहे थे टू टीच देयर किड्स विद ऑटिज्म। So I think some of us are still using basics of ABA and teach. 1980 में DSM-3 आया, जिसमें PDD आया, pervasive developmental disorder, फिर joint attention को identify किया गया, that may be the problem, और ABA के बारे में जब लोवास ने पब्लिश किया कि भाई इसका 50% क्योर रेट है, so since then it has been the rage. उसके अलावा DSM-4 में एस्पर्गर आ गया था 1994 में। अब अभी DSM-5 है। DSM-5 में एस्पर्गर जो है ऑटिज्म का पार्ट है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पार्ट है। ये जो है ये एक क्या कहते हैं पूरी ऑल इनकम्पासिंग टर्म है, और अब जो है उसको सेपरेटली नहीं कि कोई PDD NOS नहीं होता, कोई एस्पर्गर नहीं होता, सब ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में आते हैं। इसके अलावा और स्टडीज हुई जिसमें इन्होंने देखा कि हेट्रोजेनिटी ऑफ जीन्स, कि ये नहीं है कि कोई एक जीन कॉज करता है, डिफरेंट जीन्स और डिफरेंट लेवल पे इंटरेक्शन से कॉज करते हैं। फिर सिबलिंग्स में जब स्टडीज की गई कि ट्विंस में क्या वो फैमिलीज में रिकरेंस के क्या चांसेस हैं, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उनमें क्या चांसेस है, तो उन पे स्टडीज इवॉल्व हुई 2007 एंड बियॉन्ड, और अभी तक हो रही हैं। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये फॉर अस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड नॉन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पेरेंट्स, सबके लिए अंडरस्टैंड करना कि ASD के फंक्शनल लेवल्स होते हैं। हर बच्चा जिसको ASD वो एक जैसा नहीं होता। लेवल 1 होता है जिसको मिनिमल सपोर्ट की जरूरत होती है, जो कि फंक्शन कर रहा है, इंडिपेंडेंटली कर रहा है, बट हैज डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग सोशल इंटरेक्शन, लेकिन उसे आप कोर्स करके, परसुएट करके, ट्रेन करके दे कैन बी अ पार्ट ऑफ अ सोशल इंटरेक्शन, और जो है वो उनको डिफिकल्टी होगी ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग में, लेकिन they would have the best outcome. फिर ASD लेवल 2 है जिसमें रिक्वायरिंग सब्सटैंशियल सपोर्ट है,
जिसमें अब आपको ये पिक्चर्स भी थोड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि जैसे ASD लेवल 1 में वो उस बच्चे को इंटरेस्ट है बट उसको इनिशिएट करना नहीं आता, ठीक है। जो ASD लेवल 2 है उसमें उसको इंटरेस्ट भी नहीं है अपने पीयर्स में, ही मोर इनटू हिज ओन क्या कहते हैं वर्क एंड डूइंग, और उसमें जो है जो रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरेस्ट हैं वो और स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वो थोड़े से और अलूफ दिखते हैं। जो ASD लेवल 3 है रिक्वायरिंग सब्सटैंशियल सपोर्ट, जिनमें सिवियर डेफिसिट्स हैं, नॉन वर्बल हैं, वेरी स्ट्रांग रेपिटेटिव बिहेवियर एंड रिस्ट्रिक्टिव इंटरेस्ट, जिनको थेरेपीज में भी रिस्पॉन्स बहुत डिफिकल्टी से आता है। फिर ऑटिज्म का स्ट्रक्चर, मतलब बात की जाती है कि ऑटिज्म क्यों है। ऑटिज्म में देखा गया कि देयर आर फंक्शनल एमआरआई चेंजेस, ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड बस ऑटिज्म किसी को हो गया, देयर आर डिफरेंसेस दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड, और हर डेफिसिट का एक रीजन है। तो जैसे कि अगर बात करें कि सोशल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड सोशल इंटरैक्शन, सोशल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जो एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ कि अगर आई हर्ट माई सेल्फ और मैं आपसे बोलूँ डिक्शनरी, हिप्पोपोटामस, डायनासोर, vocabulary, masters, it won't mean anything. I'm hurt. I should be saying that. और मैं ये बात नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारी vocabulary है लेकिन मैं उसको socially use नहीं कर पा रही. That is what autism is, right? तो वो जो difficulties क्यों हैं? क्योंकि inferior frontal gyrus जो कि brain का एक part है, उसके अलावा जो Broca's area है जो आपका expressive speech को देखता है, और Wernicke's area जो कि आपका receive कर रहा होता है, उन सब में connectivity problems होते हैं। सोशल बिहेवियर जो कि हमारे टेम्पोरल कॉर्टेक्स, जो कि हमारा ये टेम्पल से, आप अगर मैं अपने नॉन फिजिशियन कॉलीग्स को समझाऊं, उसके अंदर होता है इमाइगडेला जो कि हमारे फियर एंड उसको जो है इमोशंस को रेगुलेट करता है, और पेराइटल कॉर्टेक्स जो कि हमारा एसोसिएशन एरिया है। तो ये सब अफेक्टेड होते हैं। तो हम जब देखते हैं कि इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों में, यानी कि उनको अपने टेम्परामेंट को क्या कहते हैं वो करना, कंट्रोल करना इन सिचुएशन दैट आर हार्ड फॉर देम, सेंसरी प्रोसेसिंग, वो सब उनके लिए डिफिकल्ट होता है। देयर इज अ रीजन फॉर इट। फिर जो रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं वो होते हैं ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि अगेन लिम्बिक सिस्टम यानी कि हमारी ब्रेन के इमोशनल सिस्टम का पार्ट है, एंड बेसल गैंग्लिया जो कि हमारी मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो इन सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जो सर्किट है देयर इज अ प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं कि इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम है, मोटर कहते हैं मोटर एक्टिविटीज ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी होती है, एंड पीपल थिंक कि दिस इज ADHD। जो नादिया ने जो पॉइंट रेज किया, हमेशा मैं जब पेरेंट्स के लिए क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ कि व्हाई एम आई सेइंग ऑटिज्म एंड नॉट ADHD, सोशलाइजेशन, आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है और सोशलाइज कर रहा है, सो ASD विल कम डाउन द लिस्ट। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव और सोशलाइज नहीं कर रहा, इट इज ASD। ASD का बच्चा इसलिए सोशलाइज करता है क्योंकि एक जगह बैठना, एक दूसरे से बात करना, जैसे हम अभी करें, इट्स अ सोशल नॉर्म। इफ यू डोंट नो द सोशलाइजेशन यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। फिर हम भी एक्सप्लोर करें, जैसे मैं एक मीटिंग रूम में हूँ तो मैं घड़ी भी देखूंगी, तो फिर मैं मशीनरी भी देखूंगी, आई विल जंप इनटू थिंग्स एंड डू थिंग्स, but that does not mean that I'm hyperactive. It just means that I want to use my spare time to explore things rather than people. तो अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक मैंने कर लिया था। आई जस्ट वांटेड कि अगर हमारे पीडियाट्रिशियन कॉलीग्स देख रहे हैं तो वो उसको थोड़ा सा देख सकें कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं, गाबा, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट, एसिटाइलकोलिन, इन सब में भी चेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेन के जो ग्रॉस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया चेंजेस है, इवन सेलुलर लेवल पे भी चेंजेस हैं, इसीलिए फंक्शनिंग जो है डिफरेंट है। सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के तो ये सारे रैशनल हैं। ये रैशनल इसलिए क्योंकि अगर हम ये सारी चीजें हमें पता होंगी तभी हम अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, तभी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं केयर में। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जो एपिडेमियोलॉजी डॉक्टर अज़रा ने भी शेयर की, जो वर्ल्ड वाइड है 1 in 160 है, US में 1 in 59, कनाडा में 1 in 66, हाईएस्ट जो मुझे मिली वो मिली थी 1 in 30 आइसलैंड, 1 in 33 साउथ कोरिया। सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे US से ज्यादा है, और बेसिकली वो स्टडी ज्यादा की जा रही है। हमारे यहाँ क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स इसलिए नहीं क्योंकि पॉपुलेशन वाइड स्टडीज नहीं है, लेकिन आई थिंक हर पीडियाट्रिशियन, हर स्पेशल एजुकेटर, हर थेरेपिस्ट कह सकता है कि दे आर ऑल ओवरवेल्म्ड विद द अमाउंट नंबर ऑफ पेशेंट दैट वी आर ऑल सीइंग। तो ये है जो प्रेवलेंस का US का, कि पहले
2004 में 1 in 166 था और अब 1 in 54 हो गया है, and it is continuing to increase year by year. So what causes autism? ये बड़ा एक क्वेश्चन आता है जो हमसे पेरेंट्स पूछते हैं कि क्यों मेरे बच्चे को क्यों ऑटिज्म है? कोई सिंगल कॉज नहीं. It's a very complex interaction of genes and environmental possibilities. और जीन्स में भी ये नहीं है कि एक जीन होगा जिसकी वजह से हो जाएगा. नो, इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल जीन्स एंड एनवायरनमेंट कैन टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन, जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं कि आप अगर आपको कोई एक्सपोजर एक सर्टेन टाइम तक हो तो आपकी जेनेटिक फिनोटाइप है वो भी बदल सकता है. So that is what it is all about. So how do you diagnose, right? So there is developmental screening and then there is comprehensive diagnostic evaluation. Developmental screening से मेरा मुराद ये है कि एक structured या unstructured interaction, इसमें चेकलिस्ट हो सकती हैं. चेकलिस्ट का मतलब ये कि कोई बनी हुई फॉर्म्स हैं जिनको आपने टिक टिक करके जो है आपने सस्पिशन रेज कर लिया, या आपने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आप स्कूल में बैठे हुए हैं, आप जो है अपने क्लिनिक में हैं एंड यू से देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस चाइल्ड, लेट्स गेट हिम इवैल्यूएटेड. सही. Then it is followed by a comprehensive diagnostic evaluation. As we have discussed, the cost that comes with the comprehensive diagnostic evaluation is quite huge, and then there is a dearth of professionals. तो ये जो है उसमें comprehensive diagnostic evaluation में gold standards यूज किए जाते हैं, और ये कभी आइसोलेशन में नहीं होता. ये ऐसा नहीं हो सकता कोई इंटरव्यू बेस्ड हो या खाली ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो. इसको इन कॉम्बिनेशन होना चाहिए टू बी मोर रिलायबल. तो ये अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का 2020 की गाइडलाइंस हैं कि ये हर पीडियाट्रिशियन के लिए है कि भाई आप स्क्रीन करें एंड आइडेंटिफाई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स. सो एक न्यूबॉर्न केयर होता है और एक हेल्थ सुपरविजन विजिट होता है जिसमें हेल्दी बच्चे रूटीनली अपने पीडियाट्रिशियंस को दिखाने आ रहे होते हैं. शुरू में तो न्यूबॉर्न केयर में तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड हेयरिंग के लिए देख लिया, बट आफ्टर दैट जब हेल्थ सुपरविजन के लिए आते हैं, जो कि 3 monthly 6 monthly पेशेंट्स मतलब बच्चे आते हैं वेल बेबी के लिए, मतलब दे आर हेल्दी एंड दे जस्ट कम टू देयर पीडियाट्रिशियन फॉर इवैल्यूएशन. सो हमेशा स्क्रीन करना चाहिए किन किन चीज़ों के लिए. डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज जिसमें ऑटिज्म है, मोटर डिसऑर्डर्स हैं, लर्निंग इश्यूज हैं, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, विजन एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट है. हमारे पास यहाँ पे शायद बहुत सारे कॉलीग्स ऑनलाइन होंगे जिनका फॉरेन एक्सपीरियंस है. वहाँ पे एवरी चाइल्ड गेट्स अ विजन एंड हेयरिंग असेसमेंट. इट डजंट हैव टू बी कि कोई प्रॉब्लम है तो करें, उससे जो है पिक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. And then look for the child's temperament. Maybe there is an issue with the child's temperament. Maybe we need to work on that. So behavioral and emotional problems के लिए भी screen करना चाहिए. Take every opportunity when a child comes for a health supervision visit to do all of these things. And that is when जब हम जो है हमारे number of children जो कि हम correctly identify कर रहे हैं और जिनको हम सही टाइम पे help कर सकते हैं वो हमारे सामने आएंगे. So the American Academy of Pediatrics says कि भाई जो regular well child clinic है उसमें developmental delays के लिए monitor करें 9 months, 18 months and 30 months. और autism के लिए 18 months से शुरू कर दें, 18 months and 24 months. However, like I would say from my experience and I think my other colleagues can vouch for it कि उससे पहले भी बहुत आते हैं, तो आप 18 months का please wait ना करें. So if there is a child who comes to you at 13 months and you are thinking oh ASD के red flags, let's start the diagnostic process and let's start intervention. तो क्या अब स्टडीज भी आ रही हैं कि आप अर्ली डायग्नोज करें. तो किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि यहाँ पे तो 4 से 5 साल में होता है. द एवरेज एज ऑफ डायग्नोसिस इवन अमेरिका इज 4. पाकिस्तान में हमने अपने सेंटर में स्टडी की थी तो मीन एज ऑफ रेफरल जो है वो 5 years है. उसमें +- 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोई आ जाता है 2.5-3 साल पे, लेकिन जो है बहुत सारे बच्चे लेट आते हैं. सो it's just not the fault of a pediatrician or a special educator, it's the fault of the system. अगर rightly red flag नहीं होंगे तो कैसे पहुंचेंगे. So red flags क्या हो सकते हैं? ये हम सब के लिए है, मतलब ये पेरेंट्स के लिए है, ये रिलेटिव्स के लिए है, ये एजुकेटर्स के लिए, थेरेपिस्ट के लिए. 6 months पे no big smiles or other warm joyful expressions. 9 months पे no back and forth sharing of sounds, smiles and expression. 12 months पे no babbling or response to me. उसके अलावा नो बैक एंड फोर्थ जेस्चर्स सच एज पॉइंटिंग, रीचिंग एंड वेविंग. जैसे बाय बाय नहीं कर रहा, टाटा नहीं कर रहा, देख नहीं रहा, मुस्कुरा नहीं रहा, पी कबू नहीं खेल रहा. थिंक अबाउट इट. 16 months पे नो वर्ड.
24 months पे टूवर्ड फेजेस का ना होना. So, और सबसे इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग है एट एनी पॉइंट इन टाइम रिग्रेशन ऑफ स्पीच एंड बैबलिंग और सोशल स्किल्स हो, तो वो तो अर्जेंट रेफरल का टाइम है. So this was again an interesting image जो मुझे किसी उस पे मिली थी, and I really like इसमें जो पिक्चर्स के तौर पे यूज के अनयूजुअल विजुअल फिक्सेशन. अब इन्फेंट्स में आप देख सकते हैं कि वो जो है पेरेंट्स से मिलने से ज्यादा वो अपने हाथों में इंटरेस्टेड, हाथों से खेल रहा है, या वो जो है अपने जो हैंगिंग्स हैं उनको देख रहा है, वो रादर देन पेरेंट, क्योंकि an infant longs for a parent or a caregiver interaction way more than a toy interaction. और जो है कहते हैं तो ये देखना चाहिए. दूसरा, abnormal repetitive behavior, spending unusually long periods of time repeating an action, like as I said, looking at their hand and repetitively rolling an object. Lack of appropriate sound development. So the way the sound should be developed वो वैसा नहीं आ रहा, monosyllables या bisyllables की emergence वैसे नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए. Delayed and intentional communication के facial expressions का ना होना और जेस्चर्स का ना यूज करना. सो बहुत सारी दफा पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि जब नीड बयान करता है तो वो हमें ड्रैग करता है. सो आई ऑलवेज आस्क, डज इट व्हेन व्हाइल ही इज ड्रैगिंग यू या पुलिंग योर हैंड, क्या वो मुड़ के आपका चेहरा देखता है कि आप आना भी चाहते हो कि नहीं, इज ही इंटरेस्टेड इन यू, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है. फिर डिक्रीज इंटरेस्ट इन इंटरेक्शन, कि उसको लोगों से इंटरेक्शन से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट होगा, उससे ज्यादा वो करना चाहेगा, टाइम स्पेंड करना चाहेगा. सो स्क्रीनिंग किस किस की करनी चाहिए, तो हाई रिस्क स्क्रीनिंग फॉर दिस पॉपुलेशन, प्री टर्मर, लो बर्थ वेट एंड फैमिली जहाँ पे एक पेरेंट या सिबलिंग को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर रहा हो. सो हमें अपने रेडार जो है वो बिल्कुल एक्टिवेट कर देना चाहिए इस केस में. फिर स्पेशल अटेंशन टू सर्वेलेंस इज ऑल्सो रिकमेंडेड एट 30 months या 3 years prior entry to the elementary education. एंड अगर कहीं भी एट एनी पॉइंट कोई कंसर्न्स आ रहे हैं तो वो स्क्रीनिंग होनी चाहिए. ऑल्दो कि ये कहा जा रहा है कि अर्ली स्क्रीनिंग में जो है आप बहुत ज्यादा जब हेल्दी बच्चों को, टिपिकल बच्चों को करते हैं तो मिस हो सकता, मतलब आप ओवर क्या कहते हैं, ओवरली एक एंजाइटी क्रिएट करते हैं और उसकी कोई एविडेंस नहीं है, बट इट जस्ट मीन्स कि रिसर्च हुई नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक बेकार एक्टिविटी, इट जस्ट मीन कि इट रिक्वायर्स मोर रिसर्च फ्रॉम आवर एंड. So this is a flowchart that I have taken from American Academy of Pediatrics again. तो जिसमें कि आपने भाई पेरेंट को एक स्क्रीनिंग टूल देते हैं, जैसे MChat है, बहुत कॉमनली. मैं तो सजेस्ट करूँगी कि टीचर्स अपने स्कूल में भी यूज़ किया कर लें, डे केयर प्रोवाइडर्स अपने डे केयर्स में यूज़ किया करें, और somebody fills that up, और I'll just go back. और अगर वो स्क्रीन नेगेटिव करता है तो और नो कंसर्न्स हैं तो आपने पेरेंट्स को आपने गाइडलाइंस दे दी और रेड फ्लैग्स बता दिए. अगर कंसर्न्स रहते हैं तो आप जो है डिस्कस करें अभी का रिजल्ट, बट अगेन फॉलो दिस पेशेंट. आप उस डिस्कशन को या उस मीटिंग को वहीं एंड ना करें. आप उनसे कहें कि हम आपसे दोबारा मिलना चाहेंगे, बिकॉज अभी एज ऐसी नहीं है, मे बी यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन एज द टाइम पासेस. तो आपने और एंटिसिपेटरी गाइडेंस प्रोवाइड की, डेवलपमेंट आपने वो किया, री स्क्रीन एट द नेक्स्ट वेल चाइल्ड विजिट. तो जो स्क्रीनिंग है ना वो एक विजिट में खत्म नहीं होती, यू नीड टू कीप ऑन डूइंग इट ऑन एवरी occasion, every opportunity that you get. And if the child screens positive, so immediate action है, आप रेफर करें जो specialist हैं who work with children with autism. It could be as mentioned before, it could be developmental pediatrician, it could be pediatrician, community pediatrician, it could be neurologist, वो speech pathologist, psychologist, वो कोई भी इंसान जिसने ऑटिज्म के साथ काम किया है जो कि with confidence कह सकता है. फिर और अगर जैसे कि यूएस में तो या क्या कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं तो वो वेटिंग लिस्ट और वाले इश्यूज होते हैं. हमारे तो एज अर्ली एज पॉसिबल, इफ यू गेट होल्ड, इफ देयर इज अ रेड फ्लैग, आपका बच्चा स्क्रीन पॉजिटिव कर रहा है, यू रेफर देम फॉर सर्विसेज. सो टूल्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, तो मोस्ट कॉमन जो हम लोग यूज करते हैं MChat और MChat R, जो उसका रिवाइज वर्जन आया है वो यूज करते हैं, कॉमनली करना चाहिए. इसके अलावा कास्ट अवेलेबल है, चाइल्डहुड ऑटिज्म स्क्रीनिंग टूल. ऊपर मैंने रीटा टी रखा है, रीटा टी आई वाज ट्रेन्ड विद रीटा टी, सो उसके लिए थोड़ा सा किट चाहिए होता है, उसमें कुछ खास चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आप स्क्रीनर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. इन्फेंट मतलब अर्ली उसमें 18 to 36 मंथ्स है.
फिर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ऑटिज्म, अच्छा कैस जो है मुझे गूगल पे आसानी से मिल गया था, तो आई थिंक आप लोग को भी मिल सकता है, यू कैन सर्च ऑन इट। कम्युनिकेशन एंड सिंबॉलिक बिहेवियर स्केल्स, ये 6 to 24 मंथ्स की एज पे कर सकते हैं, इसमें 24 आइटम्स है। तो आप ये देखेंगे हर एज पे कोई ना कोई टूल है जो आप स्क्रीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए स्क्रीनिंग टूल काम नहीं आते, क्योंकि स्क्रीनिंग टूल जो पिक तो कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे जिनको पोटेंशियली ऑटिज्म हो सकता है, लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली ऑटिज्म नहीं होगा। वो हो सकता है उनको जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग प्रॉब्लम्स, ADHD, कुछ भी हो सकता है। सो डायग्नोसिस करने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिवनेस स्केल है जो कि यूज किया जाता है, जो कि एक क्वेश्चनर है जो कि पेरेंट्स वो करते हैं, फिल करते हैं। चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल है जो कि कराची में काफ़ी कॉमनली यूज किया जा रहा है, जिसमें जो है ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, जो कि मैं और डिटेल में लेटर स्लाइड्स में डिस्कस करूंगी। देन इंडियन स्केल फॉर ऑटिज्म, तो ये अभी अवेलेबल है ऑन वेब दैट वी कैन यूज। इसके अलावा है ADOS एंड ADIR। सो ADOS रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, इवन कार्स का जो है वो B है जिसकी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग है, लेकिन जो ADOS है उसकी प्रॉपर वर्कशॉप है जो कि आपको लेनी पड़ती है, जो हम कॉमनली यूज करते हैं। ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल, उसके मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एज। इन्फेंट मॉड्यूल, टॉडलर मॉड्यूल भी है, प्री लिंगुअल भी है, फ्रेज स्पीच के साथ भी है, फ्लुएंट लेकिन यंगर किड के साथ भी है, फ्लुएंट, एडोलेसेंट एंड एडल्ट के लिए भी अलग मॉड्यूल है, क्योंकि सबसे सोशल एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हो जाती हैं। उसके साथ साथ ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू है, जो कि एक बहुत इलेबोरेट इंटरव्यू है जिसमें आप बच्चे के पास्ट वगैरह को, जो कि स्ट्रक्चर्ड है। तो हम लोग क्लिनिकल हिस्ट्री में तो पूछते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होती और हम बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। ऑल इन ऑल इन सारे डायग्नोस, यस प्लीज ये जावेद साहब का माइक तो ऑफ करवा दें। यस जावेद साहब, प्लीज कुड यू टर्न ऑफ योर माइक। थैंक यू मैम। ओके, ऑल इन ऑल इन सारे हम डायग्नोस्टिक टूल्स को अगर देखें तो हम ये ना सोचें कि भाई क्या कहते हैं अगर डायग्नोस्टिक टूल पे नहीं आया तो नहीं है। उस सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ, इज द क्लिनिकल जजमेंट, DSM-5 criteria. So it has happened to me and I think a lot of my colleagues who see kids with autism कि भाई कार्ड्स में नहीं आया तो वो ऑटिज्म नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो करने वाले की स्किल्स और वो उस लम्हे क्या कहते हैं, हाउ द चाइल्ड वाज बिहेविंग, उस पर डिपेंड करता है। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज योर क्लिनिकल इवैल्यूएशन। सो दिस इज दी एमचैट हमारे उर्दू ट्रांसलेशन अवेलेबल है, हमारे कॉलीग्स हलीमा सादी और अनम फारूक ने ट्रांसलेट किया है। ये आप बस एमचैट गूगल करें, ये लिंक यूज करें, यू कैन फाइंड इट, जिसमें जो है अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट स्कोरिंग की बेसिस पे आप इजीली कर सकते हैं। अगर इतने फेल्ड आइटम्स होंगे तो ये ASD का लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क है। और अगर जैसे हाई रिस्क है तो इमीडिएट रेफरल है, लो रिस्क है तो आप अपने एवरी डेवलपमेंटल विजिट में करेंगे, और अगर मीडियम है तो अगर जैसे हमने पिछले उसमें डिस्कस किया कि और चीजें हैं जो आपको एमचैट के अलावा दिख रही हैं, इमीडिएट रेफरल। सो एमचैट जो हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं उसकी सेंसिटिविटी 52% है ओनली, स्पेसिफिसिटी 84% है और पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू 20 to 33%। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे एमचैट से मिस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने उनको पकड़ लिया एमचैट पे, वो हाई रिस्क आ गए तो उनका चांसेस ऑफ हैविंग ऑटिज्म ज्यादा है 84। लेकिन उन सारों में पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू अगेन 20 to 33% है। सो किया ये कि उसको मॉडिफाई किया गया, उसे रिवाइज किया गया सच दैट कि अब उसकी सेंसिटिविटी 85%, स्पेसिफिसिटी 99% और पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू 82% हो गई है। तो अब आप विद कॉन्फिडेंस जो है एमचैट RF को यूज कर सकते हैं टू लाइक रेड फ्लैग अ चाइल्ड फॉर ऑटिज्म। इसीलिए जब एमचैट आया था तो देयर वाज अ कंसर्न एंड उन्होंने कहा कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कि यू नीड अ लेवल 2 स्क्रीनर एज वेल, कि खाली लेवल 1 पे आपको भरोसा नहीं करना, या तो आप सेकेंड टाइम करें या आप किसी और स्क्रीनर को इसके साथ यूज करें। दूसरा है चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। ये इसकी पूरी किट है दैट हैज टू बी परचेज्ड, और ये अब कार्ड्स 2 का वर्जन आ गया है जो कि 2010 से अवेलेबल है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें हाई फंक्शनिंग फॉर्म भी आ गया। जो पिछला वाला कार्ड था दैट कुड हैव इजीली मिस्ड अ चाइल्ड
who has high functioning autism. कार्स 2 का पेरेंट क्वेश्चनर है जो कि स्कोर नहीं होता, तो आप पेरेंट के क्वेश्चनर की बेसिस पे डायग्नोसिस नहीं बना सकते ऑटिज्म का। कार्स 2 ST है, क्लिनिशियन का फॉर्म है जिसमें ऑब्जर्वेशन बेस्ड है और जिसमें स्टैंडर्ड स्कोर्स एंड परसेंटाइल्स है। इसके कैवियट्स मैंने इसीलिए बहुत रेड करके लिखे हैं क्योंकि ऐसा हुआ है कि बच्चा का 29 का स्कोर आया और कहा गया कि ASD नहीं है। So there is no difference between 29 and 31, just a matter of opportunity and days. So agar if there is anybody who has a cutoff of more than 28 needs a full comprehensive evaluation and not to be used as a parent questionnaire. और ये पॉपुलेशन स्क्रीनर पे नहीं, ये नहीं है कि अगर मुझे जो है कराची में ऑटिज्म के लिए स्क्रीन करना है तो मैं कार्ड यूज करना शुरू कर दूंगी। इट शुड नॉट बी यूज दिस वे, और कभी भी आइसोलेशन में यूज नहीं करना चाहिए। सो इट शुड बी यूज विद DSM-5 क्राइटेरिया। अगर आपने ऑब्जेक्टिवली हिस्ट्री की बेसिस पे एसर्टेन कर लिया देन दैट्स अ गुड थिंग, और आपने एडॉस या ADIR या जो इंडिया वाली आपने टूल देखा था वो यूज किया, उसके बाद आप डायग्नोसिस बनाएं। मिस्ड डायग्नोसिस कब होता है? So children who do not have language delays, वो सबसे ज्यादा कहते हैं अरे ये तो इसको तो ASD नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बोलता है। So ये एक चीज है जिसको हमें क्लैरिफाई करनी की होती है। वो क्या बोलता है, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में कितना सक्सेसफुल है। फीमेल, so girls inherently have better play skills, better socialization skills, तो गर्ल्स में मिस हो सकता है। एथनिक माइनॉरिटीज, बिकॉज अगर हम किसी एक डिफरेंट कल्चर में जाएं एंड बिकॉज हमारे अपने कल्चरल बायसेस होंगे, हमारे अपने नॉर्म्स होंगे, सो वी माइट मिस चिल्ड्रन फ्रॉम अदर कल्चर्स। लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अगेन इट इज बिकॉज कि वो आप तक रीच नहीं करते। एंड नॉट फ्लुएंट इन द लैंग्वेज ऑफ असेसर, अगर बच्चा जो है वो इंग्लिश में फ्लुएंट और हम नहीं है, या हम इंग्लिश में फ्लुएंट हैं, वो उर्दू बोल रहा है, सिंधी बोल रहा है, पश्तो बोल रहा है, तो इट विल there are higher chances of missing that. तो डायग्नोसिस जो है हमेशा क्लिनिशियन ऑब्जर्वेशन और केयर गिवर रिपोर्ट दोनों के साथ होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन आइसोलेशन, और सिमिलरली एडॉस भी आइसोलेशन में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डायग्नोस? हम ये एक्टिविटी कर ही क्यों रहे हैं, ये रैशनल हम बता ही क्यों रहे हैं? क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली इंटरवेंशन इज द की। जितना अर्ली इंटरवीन करेंगे तो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स पता है क्या है? यंग एज ऑफ अर्ली एज ऑफ डायग्नोसिस, parents' education, mother's education, mother's mental health, and how were they able to adapt to all of this. Research supports that autistic ASD can be diagnosed as early as less than 24 months of age. So I have made the diagnosis as 18 months. Like, why wait for 2 years? Why? Mean age of diagnosis in North America is 4 years, as I said. तो वो हम अगर जितना अवेयर होंगे उतने जल्दी डायग्नोसिस बनेंगे, जितना हम जल्दी स्क्रीन करेंगे उतने जल्दी रेफरल्स होंगे। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द अर्ली रेफरल, मतलब किस किन वजह से ये डिलेस होते हैं। सो लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट, अगर बच्चे की बहुत ज्यादा सिवियर इम्पेयरमेंट है, हो सकता है वो और किसी चीजों के लिए मैनेज हो रहा हो। जैसे अगर किसी को कोमॉर्बिड विजन इम्पेयरमेंट या हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब ऑटिज्म अकर्स इन कंजंक्शन विथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ऐसे सिचुएशन में मिस हो सकता है। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होगी तो भी मिस हो सकते हैं, या बिल्कुल माइल्ड इम्पेयरमेंट है, लेवल 1 है ASD का, उसमें कहेंगे कि नहीं ऑटिज्म नहीं लग रहा। डायग्नोस्टिक सब टाइप क्या है, पेरेंट्स का कंसर्न क्या है, कि अगर देखा गया है जिनके ओल्डर सिबलिंग्स होते हैं वो जल्दी पिक कर लेते हैं, जिनके फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विद एल्डरलीज इन द फैमिली या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होते हैं वो जल्दी पिक कर लेते हैं, या हायर पेरेंटल एजुकेशन होती है, तो दीज किड्स आर डायग्नोज्ड अर्लियर। एंड इफ देयर आर कंसिस्टेंट सोर्सेज ऑफ पीडियाट्रिक केयर, मतलब एक रेगुलर पीडियाट्रिशियन है या एक रेगुलर टीचर है या एक रेगुलर थेरेपिस्ट है जो बच्चे को देख रहा है, अगर वो डॉक्टर शॉपिंग कर रहा है, थेरेपिस्ट शॉपिंग कर रहा है, तो शायद एक थेरेपिस्ट एक डॉक्टर बहुत कॉन्फिडेंस के या टीचर को बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि इफ द चाइल्ड हैज और डज नॉट हैव ऑटिज्म। और वो बच्चे जो कि अपनी फैमिली में लाइक फर्स्ट बॉर्न थे या वो थे, उनमें डिलेड डायग्नोसिस हुआ क्योंकि उनके पास कोई कंपैरिजन नहीं था, दे डिड नॉट हैव अ कंपेयर, या उनके बाद कोई सिबलिंग हुआ तो उनको ये नहीं पता था कि अर्लियर माइलस्टोन्स क्या एक्सपेक्टेड होते हैं। सोशल हमारे जो माइलस्टोन्स पे भी वो लिया जाता है, फोकस किया जाता है, वो होता है ग्रॉस मोटर और स्पीच।
So nobody focuses on the socialization milestone. These are of equal importance. So ये एक this was a model that they implemented, और ये अभी proposal है, protocol है जो कि elsewhere में publish हुआ है, जिसमें उन्होंने get set early model उन्होंने किया और उसकी pilot study आगे समझे, जिसमें उन्होंने देखा कि yes we can institute early referrals, we should, and उसमें कोई cut off की बात नहीं है, और it depends on early identification approaches pediatrician based उन्होंने देखी, कि उन्होंने कहा अभी किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, अगर we have good pediatricians, we have a good referral mechanism, so this can be done very soon or as early as 1 year of age. So who should make the diagnosis? I think this has been discussed numerous times, but I think इस पे हम ये ना सोचेंगे अगर हम diagnosis नहीं बना सकते तो हमारा कोई contribution, हम referrals कर सकते हैं. Early referrals would lead to early diagnosis. So this can be done by anyone. So as I said कि जो डे केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, they should do the screening, use the screening tools themselves and make the referrals as early as possible. So this is the usual care pathway. ये foreign countries में होता है जहाँ पे जनरल फिजिशियन देखता है, वो पीडियाट्रिशियन को रेफर करता है, पीडियाट्रिशियन स्क्रीन करता है, फिर वो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को भेजता है. बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो के डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें भी जो वेटिंग लिस्ट है टू रीच अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन 6 months to a year, और ये हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे मौजूद है. हमारे पास तो जैसे डिस्कस हुआ कि हमारे पास बहुत लिमिटेड हैं, 4 to 5, less than 10. अगर मैं बहुत वो ऑप्टिमिस्टिक भी तो less than 10 हमारे पास डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है, 40 पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और हमारे पास जो अगर मैं स्पेशल एजुकेटर्स का भी नंबर देखूं तो बहुत कम है. तो हम अपनी पॉपुलेशन के लिए इनफ किसी हाल में भी नहीं हो सकते. तो आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क टुगेदर. हम ये इस पे वो नहीं कर सकते कि ये मेरा डोमेन है तुम्हारा नहीं. वी हैव टू मेक इट अ पॉइंट टू आइडेंटिफाई किड्स विद ऑटिज्म एंड वर्क एंड क्रिएट लाइजॉन्स. हम लोग अपने साइलोज में सब काम कर रहे हैं, मैं डायग्नोज कर रही हूँ, खान में बैठ के कोई कहीं और कर रहा है. लेट्स वर्क टुगेदर. So how can special educators contribute? As I said, look for red flags. बच्चे जो आपके पास आ रहे हैं, आप obviously जो special educators होते हैं वो अपने स्कूल में खास पोजीशन रखते हैं, वो अपने टीचर कॉलीग्स को रेड फ्लैग्स के बारे में बता सकते हैं, वो स्क्रीन कर सकते हैं. Referral to the healthcare provider for diagnosis. Then modifying the academic goals based on the child's profile. हमारे बहुत चैलेंज है कि हमने डायग्नोसिस भी कर लिया, थेरेपीज भी हो गई, वो बच्चा स्कूल ट्रांजिशन करता है, वहां पे उसके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उसके थेरेपिस्ट का स्कूल से बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं होता, हमारा लाइजॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से वो बच्चा वहां पे जब स्ट्रगल करता है तो नोबडी कैन हेल्प. वहां पे टीचर स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्ट्रगल कर रहा है. सो सिमिलर और एकेडमिक गोल्स उसके हिसाब से नहीं मॉडिफाई रहे. हम हर बच्चे को वही पढ़ना है जो कि करिकुलम में है. व्हाई कांट वी मॉडिफाई इट बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? जरूरी नहीं है वो बच्चा एक सब्जेक्ट में अच्छा और दूसरे में बहुत खराब हो तो हम सिर्फ खराब वाले सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें. और मेडिकेशंस के बारे में आप हमेशा अपने पीडियाट्रिशियन और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कनेक्ट कर सकते हैं. देयर आर किड्स जिनको ASD के कोर फीचर्स की दवाएं नहीं है, लेकिन ASD विद कोमॉर्बिड रेपिटेटिव बिहेवियर्स, ASD विद कोमॉर्बिड ADHD, ASD विद इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम्स, स्लीप प्रॉब्लम्स, इन सब के लिए दवाएं मौजूद हैं. So your colleagues can support you in that, and that will result in better chances of acquiring education. फिर keep oneself updated about classroom based approaches. मैं एंड में आपको रिसर्च का pyramid दिखाऊंगी, जो मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब, मेरा ये टेक होम है कि हम गूगल स्कॉलर पे बेटर स्टडीज देखें, हम ब्लॉग्स पे, हम एनेक्डोटल एक्सपीरियंसेस पे अपनी स्ट्रैटेजीज को ना बेस करें, क्योंकि ऑटिज्म इतना कॉमन है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पे हाई क्वालिटी रिसर्च अवेलेबल है. सो लेट्स फोकस ऑन दैट एंड आइडेंटिफाई गोल्स विद पेरेंट्स वेयर थेरेपिस्ट कैन असिस्ट. सो गोल्स पेरेंट्स के होने चाहिए. हम सबका काम जैसे कहते हैं ना फैमिली सेंटर्ड केयर, तो बच्चे के और उसकी फैमिली को बीच में होना चाहिए और हम सबको उसको सराउंड करके उसको हेल्प करना चाहिए. हमें मेक श्योर करना है कि जो गोल्स पेरेंट्स के हैं वो अचीव हों. ऐसा ना हो कि हमारे गोल्स पेरेंट के गोल से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो. कभी कभार अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, एंड दैट इज द टास्क of the therapist or the educator or the pediatrician or any of the specialists
to guide them कि ये थोड़ा सा बच्चे के लिए difficult है, we may try doing that but we may look for other opportunities and strategies. So ये pediatrician की density है, हम developmental pediatrician की बात कर रहे हैं, ये global ये वर्ल्ड मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि पीडियाट्रिशियंस की डेंसिटी ही कितनी कम है, यानी कि हर मुल्क में पीडियाट्रिशियंस कितने कम हैं. सो ये रेड का मतलब ये बहुत अच्छा है कि जहाँ पे more than 100 पीडियाट्रिशियंस हैं for 100,000 चिल्ड्रन लेस देन 18 years of age. ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में सर्टन, यहाँ पे भी आप भी देखें ये मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं. आप हमारे पास आ जाए तो हम येलो हैं, लेस देन 5 per 100,000. सो हमारे तो पीडियाट्रिशियंस भी काफ़ी नहीं, आई थिंक हमारे फैमिली फिजिशियंस और सबको पिच इन करना पड़ेगा. एंड बहुत सारी रीजन्स में तो डेटा भी अवेलेबल नहीं है. सो हम लोग, हमारा अगर नेबर जो है इंडिया, उसमें अगर 5 to 10 पीडियाट्रिशियन पर 100,000 है, जिसकी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे उससे कम है. तो दिस इज व्हाट, एंड देन ईरान हैज हायर पीडियाट्रिशियंस, मोर पीडियाट्रिशियन देन अस. सो वन ऑफ माई कंक्लूडिंग स्लाइड्स के हम कैसे करिकुलम में इंटेग्रेट करें. सो व्हेन आई जॉइन माय हॉस्पिटल बैक, व्हाट वी हैव डन इज कि हमने पीडियाट्रिशियंस, क्योंकि वही फ्यूचर हैं, उनको ही सिखाना पड़ेगा. और फिर हमारे जो नॉन पीडियाट्रिशियंस कोलीग्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए. जब तक आप एक्सपोज नहीं होंगे, आप अवेयर नहीं होंगे. सो मेडिकल स्टूडेंट्स को अवेयर होना चाहिए. मैंडेटरी रोटेशंस होनी चाहिए रेजिडेंट्स की, स्टूडेंट्स की, एंड इन क्लिनिक्स और इन डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस जहाँ पर भी हो रही हैं. टीचिंग मॉड्यूल्स, डायडेक्टिक सेशंस, मॉड्यूल्स डेवलप करने चाहिए. ऑब्जर्वरशिप्स होनी चाहिए ताकि हमको डिफरेंट एरियाज पता चलें कि एज पीडियाट्रिशियन हम ये ना कहेंगे अच्छा चलो अब डायग्नोसिस हो गया तो उसके आगे क्या. सो टू अंडरस्टैंड कि वो नेक्सस ऑफ केयर है वो कैसे काम करता है. वर्कशॉप्स, दैट इज अ वे टू डिसेमिनेट. रिसर्च, दैट्स अ वे ऑफ डिसेमिनेशन. तो आप अपने थीसिस का, अपने उसका पार्ट बनाएं कि ऑटिज्म को इनकॉर्पोरेट करें. सिमिलरली हमारे जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं या हमारे थेरेपिस्ट हैं, उनका हैंड्स ऑन होना चाहिए. आई थिंक ईच एंड एवरी वन ऑफ अस जो कि अटेंडीज हैं या जो कि सुन रहे हैं, दे शुड बी पार्ट ऑफ दिस लर्निंग प्रोसेस. बिकॉज येस, जो एपिडेमियोलॉजी हमारे सामने आई है, इट इज बिकॉज ऑफ द अर्ली डायग्नोसिस और कि मोर पीपल आर बिकमिंग अवेयर. सो वी ऑल नीड टू पिच इन. सो एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड जो कि मैं दिखाना चाह रही हूँ कि सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड एजुकेटर्स हु आर contributing to the care of a child with autism should be aware कि there is this market of therapeutics जहाँ पे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, बहुत सारे मल्टीवाइटामिन्स हैं, बहुत सारी डाइट्स हैं जिन पे कोई एविडेंस नहीं है. स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आपको अवेयर होना चाहिए अगर आप, ताकि हम करेक्ट सजेशन दे सकें. क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास है, मेरे और कॉलीग्स के पास आते हैं with something that they have tried and has no evidence to support and वो उनको financially drain कर रहा है, adverse effects हैं, और कोई long term में benefits का किसी को नहीं पता. So please don't go towards that. तो आप ये देखें कि मैं ये खाली पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका में भी. तो अगर आपको नॉर्थ अमेरिका से कोई ब्लॉग या कोई लो क्वालिटी रिसर्च है जो कि किसी सप्लीमेंट या उसको वो करिए, तो आप ये कहें कि नहीं, let me go and read and let me go and come up with the answer. That may take a while, but I want to come up with the high quality answer and high quality research evidence. So again, ये सारी alternative वो हैं multivitamins, fish oil, melatonin, vitamin C, probiotics, special diets, massage, Chinese tea, meditation, acupressure, all of these have been studied. इसका आप ये देखिए mixed reviews हैं और अभी लिटरेचर डेवलप हो रहा है, लेकिन जो मार्केट है वो इतनी ह्यूज है कि आपकी सोच है. सो दिस इज, आई थिंक दिस इज माय सेकंड लास्ट स्लाइड कि हायरार्की ऑफ साइंटिफिक एविडेंस पे आप वो करें. प्लीज डोंट गो बाय केस रिपोर्ट कि मैंने केस रिपोर्ट पब्लिश कर दी अपने एक एक्सपीरियंस पे. डोंट बेस योर प्रैक्टिस ऑन दैट. सही. सो जो वीकेस्ट होता है वो ये यहाँ पर है, केस रिपोर्ट, किसी ने ओपिनियन लिख दिया. जैसे MMR वैक्सीन के ऊपर एक स्टडी आई थी जो कि वो तो एक्चुअली कोहॉर्ट बेटर क्वालिटी स्टडी थी, लेकिन जो है उसके आप ये देखें कि और उससे बेहतर क्या है.
फिर उसके बाद एनिमल ट्रायल्स आते हैं। भाई एनिमल ट्रायल में हमने जो है कोई क्या कहते हैं खास डाइट दे दी या कोई खास सप्लीमेंट दे दिया या क्रॉस सेक्शनल स्टडी दे दी, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल में आपको आगे और पीछे कुछ भी नहीं पता कि आगे होना क्या है और पीछे हो क्या गया है। केस कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपने एट दैट पॉइंट इन टाइम आपने पीछे की बात की, तो उसमें बाइसेस बहुत हैं। कोहॉर्ट में ये कि आपने एक्सपोजर से शुरू किया और आगे तक पहुंचे, तो ये क्वालिटी ऑफ स्टडीज हैं जो कि ये सारी स्टडीज किसी चीज में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे मैं किसी रेयर डिसऑर्डर के लिए केस रिपोर्ट का ट्रीटमेंट यूज कर सकती हूँ, बट नॉट फॉर ऑटिज्म दैट इज 1 in 59, नॉट फॉर समथिंग दैट इज एज फ्रीक्वेंट एज 1 in 60 वर्ल्ड वाइड। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं भाई किसी चीज के। अगर आप मुझे जब मैं किसी को इंफॉर्मेशन शेयर करूं तो मैं ये कह दूं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं इस पे कि इस पे बेस्ट स्टडीज हुई हुई हैं। सबसे ऊपर है मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यूज, कि आपने बहुत सारी स्टडीज को लेके कंपाइल किया और उसकी कंबाइन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की। ये हैं जो इंटरनेशनली गाइडलाइंस के लिए यूज होते हैं। डोंट गो बाय रैंडम पेपर्स, डोंट गो बाय क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। So my take home messages to all of you are ASD is becoming prevalent, we all know. Early diagnosis and intervention is the key. Specialists in diagnosing ASD are insufficient. So the onus is on all healthcare providers, educators and therapists. Diagnostic tools are for assistance. So make sure that false positive and negative exist, तो आप खाली उस पे बैठ ना जाएं. And awareness of evidence-based management option is essential. So this was my last slide. Thank you very much. And I'm open for any questions. Thanks a lot, Dr. Sidra. We really learned a lot. और I think हमने इस पे बहुत फोकस किया कि who needs to be trained, which was the topic of the today. Now I invite our professor, Dr. Mumtaz Lakhani, who is the chairperson of today's session. और उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि always keeps us motivating, and she was also near ex-president of the Pakistan Pediatric Association. Yes. Thank you, Dr. Azra. Assalamu alaikum, everybody. And Walaikum. good that 40 people have stayed over. I think शाम का टाइम है, थोड़े थके हुए हैं, but this is really good. मैं आपको ये बताऊं, ये इतना important topic है. Infectious diseases are disappearing from the world of children. Thank God. Thank God to the vaccination. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा behavior problems आ रहे हैं और उसमें ना कोई blood test available है, उसमें कोई radiological help भी available नहीं कि आप एक्सरे करा लें, MRI करा लें तो आप डायग्नोस कर लेंगे. ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशनल डायग्नोसिस है और मैं 20 साल से ये लेक्चर्स अटेंड कर रही हूँ, तो अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया है कि एक बच्चा जब मेरे ऑफिस के अंदर एंटर होता है तो कुछ रेड फ्लैग्स मुझे मिल जाते हैं. यानी वो आके बैठ गया, ना वो आपकी तरफ देखना चाहता है, ना वो आपकी बात सुनना चाहता है, ना उसकी माँ जो कह रही है वो कर रहा है, तो आपके पास आप उसको डेवलप करते चले जाते हैं. तो मेरे ख्याल में ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस पर आप जितना अटेंड करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे. दिस इज हाउ आई लर्न एंड आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर अजरा. इन्होंने मुझे एमचेट सिखा दिया. अभी रिसेंटली एमचेट मैंने एक बच्चे पे यूज भी किया. अपनी क्लिनिक के बाहर एक स्टूडेंट बैठी थी, उसको मैंने कहा जाओ इस मदद से एमचेट करा लो. तो इस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स, अपने जूनियर्स, इवन सेक्रेटरीज को भी कह सकते हैं, क्योंकि वो इतना इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एनी पेरेंट कैन फिल इट अप. तो मैं तो सिर्फ जितना शुक्रिया अदा करूं इस टीम का, ये जो ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर जिसको डॉक्टर अजरा एक बिल्कुल एक दीवानावार लेकर चली हैं आगे. एंड आई थिंक आई सी निदा क्वाइट ऑफन, वो भी बड़े प्रोग्राम्स करती रहती हैं. ये बहुत ही स्लो, समटाइम्स बोरिंग वाला काम है. मतलब हम देखें, हम डॉक्टर्स हैं ना, हमें लगता है 5 दिन के एंटीबायोटिक तो बच्चा ठीक हो गया, तो हमें लगता है हमने डॉक्टरी कर ली. ठीक है, जो पेशेंट अगर हमारा इमरजेंसी में आ जाता है, हम रिससिटेट करके उसको बचा लेते हैं, तो हम वो हैं, हमें तेज भागना है और तेज रिजल्ट चाहिए. ये वो है. लेकिन आप देखें 1 in 68 इज अ वेरी हाई रेशियो. एंड आई एम श्योर कि हमारी कंट्रीज की स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन 4 लाख बच्चे फिर भी जमा हो चुके हैं. सो वी ऑल कैन सी कि ये कितना डिफिकल्ट डायग्नोसिस है. लेकिन एट द सेम टाइम आहिस्ता आहिस्ता इतने सारे टूल्स जो डॉक्टर सिद्रा ने बता दिए, और डॉक्टर सिद्रा आ गई हैं डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स को, इंशाल्लाह वो आगे भी लेकर चलेंगी. बट आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मेरी पीडियाट्रिशियंस को, पेरेंट्स को, सबको ये रिक्वेस्ट है, स्पेशली पीडियाट्रिशियंस को जिनको मैं लीड करती हूँ,
कि प्लीज जितनी दफा भी आपको जूम पर दावत आ जाए डॉक्टर अजरा की, जरूर अटेंड करें, क्योंकि इसमें बहुत सीखना मिलता है. So in the end, I don't have words enough to thank Dr. Azra, Nida, and all her team, and especially to Dr. Sidra for an excellent presentation. बहुत ज़्यादा material था, ज़ाहिर है हमें absorb करने में भी time लगेगा, but more we attend, more we will be able to help these children. और मैं आपको सिर्फ आखिर में ये बताना चाहती हूँ कि Netflix पे मेरी बेटी ने मुझे 2 प्रोग्राम दिखाए, both are about autism. एक का नाम है Atypical और दूसरा है Good Doctor. प्लीज अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है, गुड डॉक्टर, तो आप मतलब डॉक्टर भी ये बन जाते हैं. 20% का IQ नॉर्मल होता है, बल्कि हायर ही कुछ होता है, तो वो तो बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हैं. लेकिन मैंने जब लिटरेचर पढ़ा तो 3 नाम है, ट्रेम्पल जेरेंडन, वेंडी लॉसन और स्टीफन शोर. ये 3 लोग हैं जो ऑटिस्टिक होने के बावजूद अपनी संभाल खुद करते हैं और स्पोक्स पर्सन है फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन. तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ होप फॉर दिस चिल्ड्रन. पेरेंट के लिए हम एक सपोर्ट बन जाते हैं और हम उनको उम्मीद दिलाते रहते हैं कि आपका बच्चा जो उसका मेजर पोटेंशियल है उसको कम से कम निकाले और एक इंडिपेंडेंट लाइफ आगे जाके गुजार सके. सो वंस अगेन डॉक्टर अजरा, डॉक्टर सिद्रा, एंड आई थे थम्स अप. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू डॉक्टर मुमताज. मैं आपसे कुछ थोड़ा सा ये भी कुछ सपोर्ट चाह रही हूँ. Being ex-president and still you are so motivating and active. इसमें because we are working on the preventive pediatrics and its physical, mental and social well-being of children. So from the platform of Pakistan Pediatric Association, much has been done for physical. I know. What about mental? क्योंकि still मैं इतना struggle करना पड़ता है कि मैं किसी तरह से PPA के से कुछ ना कुछ में मुझे सपोर्ट मिल जाए. एंड बिकॉज आई माई सेल्फ इज सो मच मोटिवेटिंग, तो दैट्स व्हाई आई कैन डू दिस, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो. तो हम कैसे इसको, जैसे कि हमने IMNCI के वो बनाए हुए हैं, हमने TB स्कोरिंग की हुई है, हमने बहुत सारी चीजें की हुई हैं और हम उसको ट्रेन करते हैं. तो मैं ये चाहती हूँ कि किसी तरीके से डॉक्टर मुमताज अगर आप हमको इसमें कुछ हेल्प आउट करें. देखिए नेचुरली अब मैं तो सेक्रेटरी जनरल नहीं हूँ, डॉक्टर खालिद शफी हैं, वो भी बड़े मोटिवेटेड है. मेरे ख्याल में वर्कशॉप्स करवाएं. आप जब वर्कशॉप होता है ना, कोई भी चीज का एक लेक्चर होता है, लोग अटेंड करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है. लेकिन वर्कशॉप्स की काफी चीजें, जैसे हमें NRP है हमारा, या IMNCI का आपने नाम लिया, ब्रेस्ट फीडिंग है, इम्यूनाइजेशन, इसमें हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं. तो मेरी सजेशन आपको ये होगी कि इसके बारे में सोचें कि आप वर्कशॉप्स करें. बड़ी बड़ी जितनी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ हमारे ट्रेनीज हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट, वहां से शुरू करें और फिर PPA के प्लेटफॉर्म पे आप करती रहती है, एक वर्कशॉप करवा लें. आई थिंक वर्कशॉप में काफी आपका हैंड्स ऑन वर्क होता है. चाहे 10 लोग आएंगे. और डॉक्टर अजरा एक बात याद रखें, हमारे मुल्क में अभी भी बच्चों की सेहत वो नहीं है जो वेस्ट में हो चुकी है. तो हम अभी भी फिजिकल बीमारियों में बहुत बिजी हैं. तो उसमें से ऑटिज्म के लिए टाइम निकालने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन और बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी. बट लेट मी टेल यू, कतरा कतरा समुंदर हो जाता है. यू विल बी सरप्राइज कि इसमें डॉक्टर आरिफ परीख बैठे हुए हैं, मैं नाम पढ़ रही हूँ, डॉक्टर जावेद, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद बैठे हुए हैं. तो पीडियाट्रिशियन आर कमिंग इन, बट इट विल टेक टाइम. ठीक है, मैंने 20 साल में सीखा है, हो सकता है कि नेक्स्ट 20 साल में आपके पास एक काफी इतने लोग हो जाएंगे कि जिनको इस बारे में अवेयरनेस है. तो आई थिंक कंटिन्यू योर वर्क, यू हैव नॉट स्टॉप्ड. आई अप्रिशिएट योर परसिवरेंस कि हर हफ्ते एक डॉक्टर अजरा की जो है वो अनाउंसमेंट आ जाती है और PPA प्लेटफॉर्म पे आप कर रही हैं. आप पंजाब वालों को लिखें, आप NWFP वालों को लिखें, आप इस्लामाबाद वालों को लिखें, ठीक है ना. तो उनमें भी थोड़ा सा घुसने की कोशिश करें, उनके अपने ग्रुप्स में, उनके जनरल नहीं, हम उनके साथ भी कर रहे हैं. नाउ वी आर आल्सो डूइंग इन कोलैबोरेशन विद इंडिया. हाँ, तो बस और इसमें हिंदी ट्रांसलेशन और सारी ट्रांसलेशन की हम वी आर ट्राइंग टू डू. मैंने एक अटेंड किया, डॉक्टर निदा ने, वो जो भी इंडियन लेडी ने, नादिया. हाँ. तो मेरे तो ख्याल, मैं तो डॉक्टर नादिया को सलाम करती हूँ कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक है, इसलिए वो इस फील्ड में आई हैं. तो आई थिंक नथिंग लाइक दैट, यू नो. सो यू कैन सी हाउ एम्पावर्ड दिस वुमन इज, दैट यू नो शी इज नॉट ओनली ट्राइंग टू हेल्प हर चाइल्ड बट चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड.
So now, Dr. Nida, once again, salute to you and to the Thank whole you so team. much, Dr. Jazakallah. नादिया, मेरे ख्याल कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने देखा है वो किसी ने ये क्वेश्चन किया है कि इवन डॉक्टर्स आर स्केयर्ड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म। तो मेरा ख्याल है कि उनको उसका जवाब मिल ही गया होगा। दैट्स व्हाई वी अरेंज दिस सेशन, है ना, कि देयर इज अ ग्रेट नीड, है ना, That's the rationale. टीच एंड टू ट्रेन डॉक्टर्स एंड पीडियाट्रिशियंस। तो उनको तो जवाब मिल गया होगा। और आप ले लें क्वेश्चंस। एक डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी डॉक्टर साहब, यस, आई हैव वन क्वेश्चन कर सकते हैं हम डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ रहीम यार खान सेंटर में, HI। तो जो मुझे जो मसला है वो ये है कि बच्चा जो है मेरा वो मल्टी डिसेबिलिटीज के साथ है। वो ASD भी है प्लस HI भी है, हियरिंग इम्पेयर्ड भी है। तो उसके लिए थोड़ा सा गाइड कर दें कि क्या करना चाहिए, क्या प्लान हो उसका। देखें, ये बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन है। बच्चे को देख के Yes. बच्चे की स्ट्रेंथ, आप अभी वीकनेस की बात करें, शायद कुछ स्ट्रेंथ्स भी हो जो हमें क्लिनिकली या कहते हैं वहां पे किसी पीडियाट्रिशियन को दिख जाए। उसकी बेसिस पे हमेशा प्लान जो है वो इन कमेंट से नहीं हो सकता। तो वो इससे हो सकता है कि आपको लग रहा है हियरिंग इम्पेयरमेंट अच्छा, दैट मीन्स विजन अच्छा है। और ऑटिज्म में बच्चे वैसे भी विजुअल लर्नर्स होते हैं। सो यूज दैट एज अ स्ट्रेंथ एंड हेल्प हिम आउट। अगर फिजिकल वो है तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। किसी जेनेटिक कंडीशन का पार्ट तो नहीं है। HI की आप बात करें तो उसका ब्रेन मैटर कैसा है, कितना फंक्शनिंग है, तो ये सारी चीजें डिटरमिन करेंगी कि हम प्लान बनाएं। मतलब अनफॉर्चुनेटली ये बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन है टू यस, प्रिस्क्राइब एनी सच एक्चुअली ये इनिशियली जो है वो पूरी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट एंड बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें करनी होती है। डॉक्टर माहिर, तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट मैम, थैंक यू मैम। राइट, Dr. Azra, can I say Yes. something? Yes, yes, sure. I am Dr. Salma. Dr. Salma Khalil I'm is with us. She is also doing a lot. Yeah. जी डॉक्टर Actually, सलमा। I am running an awareness. Ji, Assalamu alaikum. I am running an Right. awareness program, and Dr. Sidra Kaleem, you have done a wonderful workshop, and I would request you कि आप हमारे फोरम से भी ये वर्कशॉप करें प्लीज। सेकेंडली, मैं जो चीज़ एम्फेसाइज करना चाहती हूँ वो ये है, पेरेंट्स के लिए स्पेशली, कि आपको ये समझना होगा कि आपके बच्चे को एक लूप के अंदर रहना है, जैसा सिद्रा ने बताया। आप ये नहीं कर सकते कि अगर आप किसी, ऑल्दो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की टीम के साथ काम करती हूँ, लेकिन आई ऑलवेज एडवाइज पेरेंट्स के आपको पीडियाट्रिशियन के साथ, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना है, क्योंकि जो चीज़ें वो देख सकते हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं देख सकता। आपकी दवाइयों को जो वो रेगुलेट करेगा वो ये रेगुलेट नहीं करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं आपके बच्चे की मेडिसिन को रेगुलेट कर सकता। सो वी हैव टू वर्क टू मेक देम अंडरस्टैंड कि उनको इस पूरे लूप के साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहना है, क्योंकि एक तरह से राइवलरी सी बन गई है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जो लोग चले जाते हैं वो फिर डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे होते, पीडियाट्रिशियन के पास नहीं जा रहे होते। लेकिन ASTWT ऑलवेज एडवाइज देम कि आप जाइए उनके पास। ऐसा नहीं है कि अगर आप हमारे पास हैं और आपके बच्चे को फिट्स हैं तो डोंट एक्सपेक्ट अस कि हम उसे मैनेज करेंगे। तो ये अवेयरनेस देना भी पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि हर डोमेन की फंक्शनिंग अलग है, और जब तक सब मिलकर आपके बच्चे को हेल्प नहीं करेंगे आपका बच्चा कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। Yes, it is a teamwork. Always it And is a I teamwork. always do follow up. To whom I refer, I always do follow up. जी, thank you. Dr. Arith is also with us, and he's a pediatric gastroenterologist. Dr. Arith, अगर आप हमें कुछ इसमें ऐड करना चाहें या आपका कोई क्वेश्चन हो, Dr. Arith. Dr. Arith Prakash is with us. And Dr. Farooq from the PPA is also with us.
डॉक्टर किसी का क्वेश्चन है कि इसका क्योर बताएं. So there is no cure. This is a disorder. This is not a disease. So we have to manage. ये डॉक्टर सिद्रा ने भी करीम ने हैंड रेस किया हुआ था, अगर हम उनका क्वेश्चन ले लें. हाँ बिल्कुल. डॉक्टर यास्मीन करीम, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लें. Assalamu alaikum. Can you hear me? वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much. Congratulations, Dr. Sidra Kaleem. मैं तो मेरे बच्चे की वो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन भी हैं और मुझे ये एक क्वेश्चन पूछना था कि अब बच्चे को जैसे मैं मैनेज कर रही हूँ कि वो जैसे डॉक्टर सिद्रा ने कहा कि उसकी कुछ नीड्स हैं, हमें उसमें बच्चे को मैनेज करना है कि सोने से पहले बच्चे की कोई नीड है या दिन में कोई नीड है. तो मेरा बच्चा म्यूजिक जो सुन रहा है, ये जो 20 फॉक्स सेंचुरी की जो म्यूजिक है, तो अब अगर मैं उसे 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, अब मैं अगर उसको उससे डाइवर्ट करना चाह रही हूँ तो वो टेंट्रम शो कर रहा है. तो अब मैं उसको किस तरह से मैं मैनेज करूँ, या आइदर वो उसको रिलैक्स कर रहा है या वो उसको हाइपर कर रहा है. मैं इस बात को यानी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि मैं उसको किस तरह से इसको मैनेज करूं. जो चीजें जो स्लोली ग्रेजुअली जैसे डॉक्टर सिद्रा ने पहले भी गाइड किया या उनकी पूरी जैसे मेरा बेटा थेरेपीज लेता रहा, तो मैं टाइम टू टाइम सब चीजों को मैनेज कर सकती हूँ. और लेकिन ये जो करंटली ये जो इशू हो रहा है, पहले तो ये था कि अब ये जैसे बीच में लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई, कोरोना की सिचुएशन है और बच्चों का सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम है. इनको जितना हम आपने जैसे कहा कि जितना हम सोशल कर रहे हैं तो उतना इनका बिहेवियर डाउन हो रहा है. और वही हो रहा था उज़ैर के साथ. जितना वो पार्क जा रहा था, अपनी फूफो के घर जा रहा था, के घर जा रहा था, या हम लोग AKU मीन 2-3 सेशन इसके पर वीक हो रहे थे, तो यानी उसका बिहेवियर एक यानी मैनेजेबल जा रहा था. लेकिन ऑल ऑफ सडन मीन्स एज यू नो कि अब हम लोग यानी मूव कर रहे हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, तो इस सारी चीजों में इसका यानी ये इस बिहेवियर को मुझे थोड़ा हैंडल करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है अभी. तो मैं इसको किस तरह से मैनेज करूँ? थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन. आप काइंडली अगर आप डॉक्टर रजा, कैन आई टेक दिस क्वेश्चन? यस यस. अच्छा, डॉक्टर यास्मीन, पहले तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. देखिए, जिंदगी में कोई भी ट्रांजिशन आता है तो बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है उनको जब फिक्सेशन होती है ना किसी की रूटीन से, उनका कंफर्ट लेवल होता है. तो अगर आपकी जिंदगी में इतना बड़ा ट्रांजिशन आ रहा है, थेरेपीज डिसकंटिन्यू हो रही है और आप जा रहे हो, तो वो उसका एक आप समझे कि वो जो होते हैं ना एक बच्चों के लिए कंफर्ट का जैसे ब्लैंकेट होता है, किसी के लिए वो स्टफ्ड हो सकता है, के लिए वो शो उसके लिए वो चीज हो. So this would not be a good time to discontinue it. I think you should make that transition, क्योंकि अब जब भी transitions होते हैं, जैसे कोविड के दौरान हमने बच्चे देखे तो वो रिग्रेस करते हैं या अग्रेसिव होते हैं. So I'd use the term aggress or regress. So that is an opportunity कि आप उसको transition की तरफ prepare करें. जो चीजें अभी हैं आप इसको इस पे हमें ना choose your battles wisely जैसे कहते हैं. So don't try to discontinue his interest, क्योंकि वो शायद उसको कंफर्ट देता है. बट इसकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप ग्रेजुअली टेपर ऑफ करें, जैसे हम कहते हैं ना दवाएं टेपर ऑफ करना. तो एक्सटिंक्शन जो साइकोलॉजिस्ट हमारे कॉलीग्स यूज करते हैं, एक्सटिंक्शन, कि आपने पहले वो आधा घंटा है तो आपने उसको 25 मिनट किया, 25 मिनट से 20 मिनट किया, 20 से 15 करते 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 ग्रेजुअली, एंड देन आप उसको रिवॉर्ड बेसिस पे करें. तो एंड ग्रेजुअली जस्ट टेक इट ऑफ, जैसे हम दवाओं को करते हैं. तो ये सारी जो बिहेवियर वो स्ट्रैटेजीज हैं, ये सारी मेडिकेशंस की तरह प्रिस्क्राइब होती है, तो केस टू केस बेसिस वेरी करती हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्रा. एक्चुअली ये जो हमारा सेशन है, हम कोशिश करते हैं कि जनरल क्वेश्चन ज्यादा लें, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चंस में फिर वो बाकी लोगों का काफी टाइम इसमें ले लिया जाता है. तो हम कोशिश करेंगे कि जनरल बात की जाए. बिल्कुल. अच्छा, 1-2 क्वेश्चंस हैं जो जनरल हैं कि अर्ली इंटरवेंशन के लिए आप क्या समझती हैं कि क्या एज होनी चाहिए? कि कोई कट ऑफ नहीं है, कोई कट ऑफ नहीं है. जितना अगर आपको 6 महीने पे लग रहा है 6 महीने पे करें. आई हैव अ पेशेंट जो मैं यंगेस्ट 10 मंथ्स, सो एक्सप्रेम ASD फीचर्स. लेकिन लेटेस्ट बाय मतलब किस, क्योंकि जैसे जो एवरेज एज है जैसे डिस्कस या तो 4 इयर्स इज कोई भी नहीं है. वो तो नहीं, as early as possible. हाँ, as जब रेफरल आएगा, the diagnosis is not done, you have to do the intervention. So जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं
या जी जी, लेकिन जैसे अगर 5 इयर्स पे बच्चे का डायग्नोसिस हुआ है तो कई लोग कहते हैं कि 5 इयर्स इज टू लेट, उसके बाद मतलब ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू द इंटरवेंशन, लेकिन वो प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है, दैट डजंट गिव दैट मच रिजल्ट एज बट स्टिल इट इज नेवर टू लेट, है ना। Yes. विंडो पीरियड हम कहते हैं 1000 days, बट इट इज नेवर टू लेट, है ना। बिल्कुल, जी जी, इट्स बिकॉज whenever ऑफ फर्स्ट एंटायर डेवलपमेंट वो बेसिकली जब ज्यादा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक यानी कि मोल्डेबल होता है फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ में, तो उसके बिल्कुल। बाद टाइम तो Yes. न्यूरोप्लास्टिसिटी कम होती जाती है, लेकिन Yes. एज डॉक्टर अजरा सेड इट्स नेवर टू लेट, हम वी शुड नॉट नेवर लूज होप क्योंकि किड्स डू लर्न। और डॉक्टर सिद्रा, एक मैं जनरल क्वेश्चन ये करूंगी कि what can we do, as Dr. Mumtaz Lakhani also said that we should be arranging more of the workshops. इस ट्रेनिंग के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की तो एक सेशन इज नॉट इनफ, इसके लिए कोई ऐसे हम कोर्स डिजाइन करें, कोई करिकुलम हो जो सर्टिफाइड हो। बिल्कुल, Yes. देखिए ये यस इट शुड बी, ये अल्टीमेट गोल होगा, लेकिन आई थिंक हम अपने पीयर से एज आई से डेकेड्स बिहाइंड है इन टर्म्स ऑफ आवर वर्क इन, आप लोगों ने यू हैव टेकन द लीड एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सब एक साथ हो जाएगा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज भी ओवरवेलम होंगे, हम भी ओवरवेलम होंगे, क्योंकि आई थिंक एज पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मुमताज, हम फिजिकल डिसेबिलिटीज भी देख रहे हैं, हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज भी देख रहे हैं, हम मैल न्यूट्रिशन भी देख रहे हैं, हम इन्फेक्शियस डिजीज भी देख रहे हैं, सिमिलरली एजुकेशन में हम बहुत कुछ इस तरह से देख रहे हैं। सो येस, दैट इज द अल्टीमेट गोल। तो अल्टीमेट गोल तो बल्कि ये होता है कि पॉलिसी मेक हो और जो है गवर्नमेंट लेवल पे चेंजेस आए, स्कूलिंग ज्यादा इंक्लूसिव हो। कितने बच्चे हैं जो थेरेपीज लेके जो है घर में बैठे हुए क्योंकि उनको वो स्कूल में आ नहीं सकती या सिर्फ स्पेशल एजुकेशन सिस्टम्स में आ सकते हैं, तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बट वी शुड यस, so we should start with workshops, बट मैं जैसे डॉक्टर अजरा को हमेशा कमिट करती हूँ और मैं वो प्लान नहीं कर पाती, तो मैं ये that is a challenge. So people who are like people like us can guide through, लेकिन जैसे ओनर्स वाली बात है ना, वो शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं करिकुलम बनाऊंगी शायद वो फिर कभी भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि सब हर इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मतलब ये जैसे अगर किसी ने, सॉरी टू इंटरप्ट, किसी ने शेयर किया कि थेरापेटिक मॉड्यूल्स होने चाहिए, तो वही बात है कि मतलब इट्स नॉट दैट इजी। हम मतलब अपने एंड पे ये कर सकते हैं कि हम पेरेंट्स एम्पावरमेंट करें, विच वी आर ट्राइंग टू डू थ्रू आवर सेशंस, मतलब, और हम जैसे आप प्लान करती हैं वैसे ही हम भी प्लान करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली विद बीइंग रियलिस्टिक इट्स नॉट पॉसिबल कि सब कुछ किया जा सके। बट इफ डॉक्टर सलमा जैसे लोग और बाकी इसमें जो फील्ड में लोग हैं, कुछ अच्छे थेरेपिस्ट हैं, सर नौशाद हैं, अदर लोग हैं, आयशा आरिफ सुल्तान है, शमसुन्निसा है, मतलब दे पीपल आर डूइंग ग्रेट जॉब। तो मिलके अगर कुछ काम किया जाए ऐसी पेरेंट्स एम्पावरमेंट के लिए, हम कोई वर्कशॉप्स अरेंज कर दें, मैनुअल्स बना दें, तो इट वुड बी ग्रेट। आई थिंक आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि जिस तरह से सर्विसेज बढ़ी हैं कराची में, लाइक तो आई थिंक हम उसकी तरफ भी जाएंगे। जब ज्यादा लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक अप करेंगे तो करिकुलम भी बनेंगे, मॉड्यूल्स भी बनेंगे, क्लिनिक्स भी ज्यादा होंगी। और अगर मैं एक स्टडी को कोट करूं जिसमें उन्होंने किया था कि एक पीडियाट्रिशियन और एक साइकोलॉजिस्ट रन स्टडी थी, वो क्लिनिक थी जिसमें कोई डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन नहीं था, एंड ये इन्होंने किसी डेवलप कंट्री की थी और अभी पब्लिश हुई है। तो उसमें ये था कि वो इम्प्रूव हुआ, मतलब वो जो है पेशेंट केयर इम्प्रूव हुआ, वेटिंग टाइम्स डिक्रीज हुए। तो ये सारे आइडियाज है ना, ये हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इंशाल्लाह, एंड वील इनोवेट द हेल्थ सिस्टम फॉर आवर पेशेंट्स। And Nadia, can I add something? जैसे Yes, sure. ASTWT got a very big parent support group program, और हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स हैं, और ऑन देयर डिमांड एंड जैसा नीड अकॉर्डिंग हम वर्कशॉप्स करते हैं पेरेंटल ट्रेनिंग के लिए। जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग पे हम कर चुके हैं 2 बार, और इसी तरह बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे, घर पे आप कैसे कर सकते हैं, होम बेस्ड मैनेजमेंट प्लान, कोविड में इट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो ये कि डिफरेंट टॉपिक्स को लेके, जो जनरल टॉपिक्स होते हैं, जो पेरेंट्स के ग्रीवेंसेस होती हैं, उनको पेरेंट सपोर्ट ग्रुप के थ्रू बहुत अच्छी तरह एड्रेस किया जा सकता है। और ASTWT हर महीने
ये रन करता है और इसमें यास्मीन करीम भी मेरा ख्याल है आती रही हैं. डॉक्टर यास्मीन करीम, शी इज ऑलवेज अ वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ आवर ग्रुप और इस तरह काफी लोग हमें ज्वाइन करते हैं. और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो एक्सपीरियंस पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अब एडोलेसेंस वगैरह में आ चुके हैं, वो यंग पेरेंट्स के को बहुत अच्छा गाइड कर रहे होते हैं और आपस में पेरेंट्स की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बिल्ट हो रही है. यानी हम काफी सारे पेरेंट्स से यही कहते हैं कि आप आपस में कनेक्ट हो जाओ ताकि आप एक दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न करो. बिल्कुल डॉक्टर सलमा, आई थिंक कि मतलब ये काम अब काफी हद तक हुआ है और कोविड ने इस चीज में सबको बहुत सपोर्ट किया है. ये ऑनलाइन सेशंस के थ्रू, इवन वी थ्रू ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स वी आर बीइंग डूइंग इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग. हमने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं और पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स. बट द थिंग इज कि जहां ज्यादा मसला आता है दैट इज डायग्नोसिस, क्योंकि पेरेंट्स का मेन that is a different workshops for parents, and we are talking about the workshops to train doctors, pediatricians, special educators. बिल्कुल के फॉर डायग्नोसिस, बिकॉज डायग्नोसिस में जैसे मैंने स्टार्ट में भी मेंशन किया कि देयर आर वेरी फ्यू लेबर या ह्यूमन रिसोर्स डूइंग दैट. For the vote of thanks, There's a question by Mr. जान नसीम साहब ने एक हैंड रेज किया, उनसे पूछ लेते हैं क्या जल्दी से. जी इमरान साहब. अस्सलाम वालेकुम. बहुत सारे सीनियर लोग यहाँ पे मौजूद हैं. मैं बस थोड़ा सा चीज ऐड करना चाहूँगा. मेरा बच्चा है अभी 6.5 साल का है. कुछ 4 साल पहले मैंने इस्लामाबाद से ये सफ़र स्टार्ट किया था. बहुत सारे लाहौर, गुमा, रहीमयार खां से वैसे तल्लक है, वहाँ से भी मैंने थेरेपी सर्च की, सखर से सर्च की और फाइनली अभी कराची में हूँ. 2 साल से यहाँ पे थेरेपीज हो रही हैं. एक चीज तो मैंने बहुत ज्यादा फील की कि जो बाकी शहर हैं, छोटे शहर, वहाँ पे तो बिल्कुल कोर्सेज अवेलेबल नहीं है. मैं तो लकी रहा कि मुझे रहीमयार खां में भी एक अच्छी स्पीच थेरापिस्ट भी मिल गई और साइकोलॉजिस्ट भी मिल गई और वहाँ पे मैं थेरेपी लेता रहा. और लेकिन जो बाकी छोटे शहर हैं वहाँ पे ना डॉक्टर इतने ट्रेंड हैं और ना ही फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो लोग जो है वो डायग्नोज ही नहीं हो पाते और वहाँ पे बहुत ही बुरे हालात है. छोटे शहर जितने भी समझ लो. और दूसरी पॉइंट ये है कि यहाँ जो बड़े शहर हैं वहाँ पे भी कोई ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म कोई नहीं है. बहुत सारे सेंटर्स तो बंद गए हैं, अब नए नए बंद भी रहे हैं, लेकिन वो कई जगह पे लगता है ऐसे है कि वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं पेरेंट्स, क्योंकि ये एक डिफरेंट फील्ड है और पेरेंट्स को नॉर्मली शुरू में तो बिल्कुल पता भी नहीं होता और वो परेशान भी बहुत होते हैं. तो वो उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है. Actually, yes, actually, that's why we are doing such type of the sessions, and we are ready to arrange anywhere on the Zoom. तो हम लोग छोटी छोटी जगहों पे भी, अब हमने कोयटा में भी और मुख्तलिफ जगहों पे हम कर रहे हैं. तो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ना. जी बिल्कुल. जैसे डॉक्टर सिद्रा कलीम है, इन्होंने मतलब इनकी अगर कई दफा ग्रुप मीटिंग्स होती होंगी, वर्कशॉप्स वगैरह, या इनके जो पेडियाट्रिशियंस हैं उनकी जैसे जनरल सर्जन्स की होती हैं, तो मे बी वहाँ पे ये अवेयरनेस का कुछ ऐसे कंडक्ट कर सकती हैं. एक चीज तो वो हो सकती है जिसमें छोटे शहरों के जो पेडियाट्रिशियन हैं उनको ये अवेयरनेस दी जा सके ताकि वो डायग्नोसिस की हद तक जा सकें. और दूसरा ये कि कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि जैसे जो सेंटर्स बन रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ एक जी आई थिंक कुछ नेट इशू है. जी इमरान साहब की तरफ से शायद कुछ नेट इशू है. आपका हमें तक पहुंच गया है जो कंसर्न है और बिल्कुल वैलिड कंसर्न है. डॉक्टर रज़ा, इस पे आप क्या ऐड करेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर इनके अपने रहीमयार खान में करना चाह रहे हैं तो वी आर रेडी टू डू. मतलब हम लोग मुस्तकिल कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो अगर आप चाह रहे हैं तो हम आपके यहाँ भी अरेंज करेंगे. और वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड द मैसेज टू द क्वेटा एंड हैदराबाद एंड डिफरेंट प्लेसेस. तो हम लोग मुस्तकिल इसमें लगे हुए हैं. तो मेरा ख्याल है कि अब हमारा टाइम
काफी जी। हो गया है तो for the vote of thanks, I think Nadia or if Dr. Farooq Bhayat is here, I request Dr. Farooq for the vote of thanks. I think he's not here. It's from I the think he PPA. has left. Okay, Nadia. Thank you so much. It was really a great session, Dr. Sidra. We are highly obliged to you for your time. You spent your precious time और इतनी efforts. और मेरे ख्याल से it was beneficial for everyone, for parents, for special educators, for doctors, pediatricians. और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा pediatricians के लिए, क्योंकि it was in medical में भी काफी चीजें आपने share की और special educators के लिए भी. So I think we should end the session with this hope कि ज्यादा से ज्यादा pediatricians इस फील्ड में भी आए, इसमें जानने की कोशिश करें. सेम गोज फॉर स्पेशल एजुकेटर्स. अर्ली डायग्नोसिस हो, अर्ली इंटरवेंशन हो, यही हमारा मकसद है. इसी के लिए हम चाहते हैं कि अल्लाह करे कि कुछ ऐसा हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले कि ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वगैरह आ सकें. इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग हो डायग्नोसिस के लिए, ताकि ऊपर से नीचे तक लेवल में ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकें. And secondly, I am really grateful to Professor Dr. Mumtaz Tikhani for taking out her precious time and gracing the event as always. Mashallah, जब भी Dr. Mumtaz Tikhani से request की है, she is always being there, supporting us, motivating us. For Dr. Salma Khalil, thanks for your presence. It was pleasure having you with us as always. And thanks a lot to all the parents who joined us, to all the therapists, special educators, doctors. Bundle of thanks. And special thanks to our director, Dr. Azra Rafiq, जिन्होंने अपनी vacations में भी ये काम जारी रखा है सबके benefit के लिए. And she is there with us in the early morning from Canada. So thank you so much. Okay. Thank you so much, Dr. Azra. I think it's time to sign off. Yes. For today's session, and we will inshallah be joining with all of you in our next session with topic of your choice. You can share, and we are planning to have a session on occupational therapy in next session, क्योंकि अभी तक हमारा occupational therapy पे ज़्यादा discussion नहीं हुई. तो और भी आप लोगों की कोई suggestion हो, so you can share it in our group Autism Surveillance and Management Project में आप दे सकते हैं कि आप किस चीज़ पे discussion चाहते हैं, और या आप हमें WhatsApp ग्रुप पे भी हमें बता सकते हैं. तो थैंक यू सो मच.